limitation of ethical hacking, guys. So limitations of ethical hacking, what does it mean? That means is that means how much we have a limitations for the that means doing some ethical hacking concepts. So first one is no absolute security. What does it mean? No absolute security. Ethical hacking can find and fix vulnerabilities. Just an example, but not no system in 100% secure as we know, right? Just an example, a company fixes a security issue today, but a new type of cybersecurity is discovered tomorrow, right? So there was a possibility to hack that means that system because that system is don't know how they deal with the new virus. That means new that means malware, right? So that is the reason no absolute security we can say because as we are updated our that means system, but there was that means some anti that means the antivirus tool, but they cannot detect the new antivirus which is just like generated that means recently. So on what is that mean? That means your system is not secured completely because your antivirus have no capability. उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो आगे जस्ट दैट मीन्स कि कोई वनरेबिलिटीज नहीं है उससे वो लड़ पाए. दैट इज द रीजन लिमिटेशंस में आप ये भी आता है कि नो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी कि पूरी तरीके से कोई सिक्योर दैट मीन्स नहीं रह सकता कोई भी सिस्टम बिकॉज हम कोई भी नया मॉलवेयर या फिर कुछ भी नया बग बना के हम उसमें इंजेक्ट करके उसको एक्सेस ले सकते हैं अगर उसके दैट मीन्स उसका अगर एक्सेस दैट मीन्स लैपटॉप पुराना हुआ तो. आई होप इट इज क्लियर. नो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी. Now we have legality and authorization. What does it mean? Legality and authorization. Ethical hacker must have permission before testing. Hacking without approval is illegal, right? So for ethical hacking, we have to take authorizations from the that means company where we need to do the attack, right? Because ethical hacking must taken that means approval if you want to that means hack any system, so you need to take up approval from there that means from them so that you can just hack, right? सो एथिकल हैकिंग में ही ये चीजें आती हैं कि आपको ऑथराइजेशन की जरूरत है एंड विदाउट ऑथराइजेशन इफ वी वांट अगर हम विदाउट ऑथराइजेशन कर रहे हैं तो वो ब्लैक हैट हैकिंग हो जाती है, राइट? सो वो एथिकल हैकिंग में नहीं आती. तो दैट इज द रीजन सेकंड टॉपिक है लेगलिटी एंड दैट मींस ऑथराइजेशन. सो यस, फॉर अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वी नीड टू that means take a permissions before testing or hacking without approval is illegal, right? So another topic is resource limitations. What does it mean, resource limitations? So resource limitation means ethical hacker have a limited time. Just an example, Safi is doing a, that means job as an ethical hacker, and he have only the 9 hours to do the that means any attack. But is it possible in a 9 hours he can attack that means completely? No, वो पूरी तरीके से अटैक कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज अटैक इफ यू वांट टू डू द अटैक देन इट विल टेक अ टाइम. It approximate take a time 1 week, 1 month, 1 year like this. Because if we want to that means hack any system, so there was some possibility we cannot get any kinds of that means vulnerability in easy manners. It will take time to find a vulnerabilities, it will take time to execute that command, so it will take a time after a 9 hours. Do you agree, guys? जी सर, लो। Yeah. सो दैट इज द रीजन कि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं. दैट मीन्स रिसोर्स लिमिटेशंस मीन्स हमारे पास जो टाइम होता है, टूल होता है, बजट होता है, वो हमारे पास लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं होता. बिकॉज if company hires an ethical hackers for 1 week security test, but real hackers might be spend a month planning an attack, right? कि अगर भैया कंपनी ने तो हमें 7 दिन के लिए हायर कर लिया, बट जो रियल हैकर होते हैं वो कम से कम 1-2 महीना उसको वो करते हैं, जांचते पड़तालते हैं कि इसमें क्या चीजें होनी है. पहले वो सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, फुटप्रिंटिंग करेंगे, रिकनसाइनेंस करेंगे, मतलब उसके मतलब गैदर इन्फॉर्मेशन करेंगे हर जगह से कि टारगेट का मेरे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा वो कलेक्ट करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से हो चाहे कहीं से भी हो. पहले वो ये सब चीजें देखेंगे, तो वो सब मतलब इकट्ठा करने में 1 महीना लग जाता है. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वी कैन हैक एनी सिस्टम इन अ 1 day और 1 week? इज इट नॉट राइट? सो resource limitations is also be there. And testing period, as I already told you, we have a limited time if we are doing a job in industrial area. So for the limited time we cannot test that mean test any attacker, that means uh,
attacker's desktop or any, that means an attacker device, we cannot test completely. However, if we are doing attack in a real attack from our own self, then we can give the time, right? अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप क्या कर सकते हैं, 9 घंटे ही दे सकते हैं, राइट? बट अगर आप अपने लिए हैकिंग कर रहे हैं तो आप पूरा दिन दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. सो अ हैकर कैन ट्राई अटैकिंग अ सिस्टम फॉर years, but an ethical hacker may have just 2 weeks for testing, right? So if we want to hack, that means from our self on self, then we can give the time unlimited, right? But if we talk about the company, if we are doing hacking for the behalf of the company, then we can give the only 9 hours, because there are some limited time you need to come, that means your home also, right? So अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको घर भी आना पड़ेगा, तो दैट इज द रीजन आप क्या करोगे, 9 घंटे ही दे सकते हो. तो ये भी टेस्टिंग पीरियड में एक लिमिटेशन है कि आप टेस्टिंग पीरियड में सिर्फ 9 घंटे ही दे सकते हो, पूरा टाइम नहीं दे सकते. सो इट इज ऑल्सो कम्स टू द limitations of ethical hacking. Now we have a last topic of human factor. What does it mean? Sorry guys, today I'm not feeling well, that is the reason. मैं खांस रहा हूँ थोड़ा सा, सो प्लीज डोंट माइंड गाइस. सो ह्यूमन फैक्टर क्या होता है गाइस? अगर हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जैसे कि यूज कर रहे हैं, सो ह्यूमन मिस्टेक्स कैन लीड टू ब्रीचेस, राइट? कि ह्यूमन मिस्टेक्स होनी जरूरी है. हाउ इट इज डूइंग, कि जस्ट एन एग्जांपल मैं हूं, मैंने ही क्या किया, मैंने अपने फेसबुक का पासवर्ड बहुत इजी डाला, शुभम@123. हाँ, ये पासवर्ड नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं आप मेरी आईडी लॉगिन करके देखें. सो शुभम@123 मैंने अपना पासवर्ड डाला, और क्या करा, अटैकर्स ने ब्रूट फोर्स अटैक किया. सो व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? ब्रूट फोर्स अटैक होता है कि जिसमें मिलियंस ऑफ पासवर्ड जिसमें होते हैं, एक फाइल होती है, उसको वो क्या करता है, फाइल को एग्जीक्यूट करता है थ्रू द कमांड, एंड देन वो क्या करता है, सही पासवर्ड को मैच करता है वन बाय वन, एंड अगर वो मैच कर जाता है तो वो उसको रिजल्ट मिल जाता है और वो पासवर्ड एक्सेस कर लेता है. सो उसी से ही क्या करता है, वो मतलब हैकर उसको अटैक को मतलब क्या कहते हैं, कंप्लीटली सक्सेसफुल कर लेता है. बट व्हाट इफ कि अटैकर कैसे उसको कर पाया, बिकॉज मैंने क्या करा था, इजी पासवर्ड रखा था. अगर मैं उसको हार्ड रखता थोड़ा, कि डॉलर, परसेंटेज और हैशटैग एंड @, की सब साइन यूज करता, और उसके बाद कुछ नंबर्स यूज करता, तो इट माइट बी पॉसिबल अटैकर कैन नॉट हैक इन इजीली मैनर, राइट? एंड अगर मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देता उस पे, तब तो बहुत ही रेयर चांस हो जाता कि उसे हैक करना. ठीक है. तो ये ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं कि कुछ कुछ मिस्टेक्स हम भी कर देते हैं, वीक पासवर्ड बना देते हैं. दैट इज द रीजन हैकर कैन हैक आवर डिवाइस. आई होप ऑल दैट मींस पॉइंट्स इज क्लियर टू एवरीवन गाइस. गाइस, राजा, सफी, विष्णु, every point is clear to you guys? If you have any doubt, then please let me know. No absolute security, legality and authorization, resource limitation, testing period, human factor. Please. Hello, Safi, are you there? Raja, are you there? Yeah, Yes. sir. No Yes, sir. doubts. Yes, sir. Do Yes, you sir. have any No, doubt? Mm-hmm. no doubt, sir. Okay, great. So now we have skills of an ethical hacker. So what skills which we required for a, that means become an ethical hacker? So first one is technical proficiency. What does it mean? Technical proficiency, as we familiar with the name, if you want to become a cyber security that means expert, so you must have, that means knowledge, strong knowledge of operation system, just like networking and programming and so on, right? अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आपको नॉलेज ही नहीं है, देन इज इट पॉसिबल कि आप टेक्निकल प्रोफिशिएंसी कर सकते हैं, राइट? नहीं. बिकॉज आपको नॉलेज ही नहीं है, देन यू बिकम अ स्क्रिप्ट किडीज ओनली. ठीक है. आप स्क्रिप्ट किडीज कहलाओगे, बट आप टेक्निकल प्रोफिशिएंसी नहीं कहलाओगे. बिकॉज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लिनक्स कमांड, and you are not understanding the networking concept, then how is it possible, right? So how is it possible to, that means that means to become a technical proficiency of a cybersecurity, not, right? So for technical proficiency you must have a knowledge of the, that means a strong knowledge of operation system, networking and programming. Okay. So cybersecurity knowledge,
What does it mean, cyber security knowledge? So that means is understanding cyber threats, attacks, techniques and security defenses. कि कैसे कैसे अटैक्स हो रहे हैं, कैसे कैसे थ्रेट्स हो रहे हैं, कैसे कैसे टेक्निक यूज की जा रही है, वो सब चीज आते हैं साइबर सिक्योरिटी नॉलेज में. एग्जांपल, knowing how malware, phishing and ransomware work and how to prevent them. ठीक है, कि जैसे कि कोई मालवेयर आ रहा है, कोई फिशिंग अटैक हो रहा है, रैंसमवेयर हो रहा है, उस पर काम करना और उसको बचाना. इट्स कम्स टू द साइबर सिक्योरिटी नॉलेज. नाउ वी हैव वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है कि अगर आप कोई भी वनरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिक्स करते हैं किसी भी वेबसाइट में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में, वो हमारा कहलाता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. एग्जाम्पल, आपने डिटेक्ट किया एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, दैट मींस एक्सेसेस एंड ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इज एन कंपनी वेबसाइट. दैट मींस कि आपने कोई भी वेबसाइट में मॉलवेयर आपने फाइंड किया और उसको फिक्स किया, दैट्स इट. सो इट्स कम्स टू द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. Then now we have wireless security. That means securing Wi-Fi networks and protecting against a wireless attack. So वायरलेस सिक्योरिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो गाइज हमारे पास पहले WPA2 था. WPA2 जो होता था वो क्या करता था, वाईफाई को प्रोटेक्ट करता था. पहले कुछ सालों पहले हम WPA2 यूज करते थे. ये एक टूल होता था जिसमें क्या कहते हैं, मतलब एक तरह का टूल्स होता था, डिवाइस होता था जिसमें हम क्या करते थे, यूज करते थे उसको वायरलेस सिक्योरिटी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए. हाउएवर उसके अंदर ब्रूट फोर्स अटैक हो जाता था, तो ब्रूट फोर्स अटैक वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था. तो इस वजह से हमने क्या लेके आए, इस अब हम नया लेके आए इंक्रिप्शन मेथड WPA3. वो क्या करता है, अब ब्रूट फोर्स अटैक को भी रोकता है. तो वो वायरलेस सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए यूज किया जाता है. आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ आई मूव टू दी, दैट मीन्स footprint on a web server. I will show you the later, after the end of the module, how we can footprint the web server. Okay, so for this we have a hands-on also, so I will teach you. But before, I need to complete that module today so that we can start, that means another module. So information security control. Information security control means, what does it mean, information security controls? Guys, anyone know about this? That information security control, that means information assurance. What is IA? Information assurance. Is anyone know? कोई जानता है इसके बारे में? Guys, are you there? Safi, Raja, I'm audible, I hope. Hello, guys, are you there? Hello, I'm audible. Hello, guys, I'm audible. Hello. One. Ajay, I am audible. Raja, Safi. Yes, yes, yes. Shubham sir, you are audible. So why they are not responding, guys? Okay, so guys, we are that means going to do the hands-on now, footprinting the web server now, so that we can go with the module. That means next module. That means next concept. That means for the theoretical part. But now we just move to the practical one, hands-on of the footprinting the web server. Okay, so I'm just open my Kali Linux.
I'm putting my password. So for this, we required a Metasploit table too and Kali Linux too because Metasploit table is a web server. So I need to just hack the Metasploit table. That means live. So my Kali is just going to open. I'm again open my Kali. So guys, my Metasploit table is open now. Now it's time to open my Kali Linux. So before performing the hands-on of Footprint, the web server, I would like to tell you the web server. What is the web server, guys? A web server is a computer or a software that stores website and delivers web pages. ओके क्या मैंने बोला कि वेब सर्वर एक तरह का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है या कि सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेबसाइट को स्टोर करता है और डिलीवर करता है उसके वेब पेजेस पे और यूजर को जब वो क्या करते हैं वेबसाइट पे एड्रेस टाइप करते हैं ब्राउजर पे तो वो उसको रिजल्ट फाइंड करते हैं एग्जाम्पल जैसे कि आप google.com पे गए आपने क्या करा स्टोर करा गूगल की वेबसाइट को तो ये क्या करेगा उसको सेंड करेगा ब्राउजर पे और आपको पेज को शो करेगा जैसे आप करते हैं ठीक है सो यही इसका काम होता है मेन अब इसमें अटैक कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सो फर्स्टली आई नीड टू ओपन माई टर्मिनल गाइज आई एम जस्ट ओपन माई टर्मिनल एंड जस्ट जूम इट and I just enlarge my icon so that it could be visible to you. So firstly, I need to just open my Metasploit table and I just wanted to know the IP address. So इसका IP address है 192.168.15.14.10 140. सो इसका IP एड्रेस मुझे पता चल गया सो नाउ मैं क्या करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना काली लिनक्स ओपन किया देन मैंने मेटास्प्लोइट टेबल ओपन किया देन मेटास्प्लोइट टेबल का मैंने आईपी एड्रेस डाला देन मैं काली लिनक्स पे आया ठीक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे स्कैन करना है नेटवर्क nmap स्पेस -sv sv क्या है यहाँ पे इस ये वर्जन को बताता है कि भाई सारे वर्जन मुझे बताओ देन मैंने 192.168.15.140 दैट मींस टारगेटेड का दैट मींस मेटास्प्लोइट टेबल का आईपी एड्रेस डाला जो मुझे स्कैन करना है एंड देन ओ स्टैंड फॉर ओपन पोर्ट दैट मींस मैंने ओपन पोर्ट्स को स्कैन करना है देन मैंने एंटर मारा हिट एंटर देन इट इज गोइंग टू स्टार्ट स्कैनिंग ओके
सो गाइज बी विद मी, अगर कुछ भी डाउट हो आपको प्लीज फील फ्री टू आस्क। सो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि मेरे जो पोर्ट्स ओपन दिखा रहे हैं वो कौन से। सो मेरे जो पोर्ट्स हैं, पहला पोर्ट्स, एक मिनट, पहला पोर्ट है 21 टीसीपी ओपन है, 22 भी ओपन है, 23 भी ओपन है, 25, 53, 80, 111, 139, 445, लाइक दिस, कि ये सारे पोर्ट्स मेरे बने हैं guys। कमांड ओके, इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, विच आई जस्ट लाइक टू दैट नीड, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द वर्जन आल्सो एसवी, तो यहाँ मुझे वर्जन भी मिल गया। ठीक है, सो now what I can do, I just open my, that means Firefox. Okay, Firefox, allow me 1 minute, here I'm open my Firefox। ठीक है, जी सर, आपका वॉइस सर ब्रेक हो रहा है सर। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, सभी के लिए ब्रेक हो रहा है। अजय, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, आप बता सकते हैं? अभी सर क्लियर है सर। ये समटाइम हो रहा है लेकिन अभी तो क्लियर है। ठीक है, जैसे ब्रेक हो आप मुझे बताना, ठीक है, मैं दोबारा से ओके नेटवर्क में आ जाऊंगा। ओके, ओके सर। ठीक है। ओके 192.168.15.140 एंड देन कॉलन, हिट एंटर। जैसे ही मैंने हिट एंटर किया, मुझे क्या दिखा, मेटास्प्लॉइट टेबल का वो दिख गया, दैट मींस पेज, राइट। तो जैसे ही मैंने हिट एंटर किया, यहाँ पे मेटास्प्लॉइट टेबल का पेज आ गया, दैट मींस कि हमारा ये वर्क कर रहा है, आईपी एड्रेस अभी हमारा वर्क चल रहा है। देन मैंने क्या किया, काली लिनक्स के मैं टर्मिनल पे गया, मैंने इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। जैसे ही मैं काली लिनक्स के टर्मिनल पे जैसे जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें टर्मिनल का अनदर एक टर्मिनल ओपन कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, वैसे अगर आप नहीं चाहते करना ओपन तो मत करिएगा, बट मैंने ऐसे ओपन कर लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उसको समझने में। तो पहले मैंने क्या किया गाइस, प्लीज समझते रहिएगा। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने पहले पोर्ट स्कैन करी थ्रू द एनमैप, मैंने स्कैनिंग करी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, दूसरा मैंने खोला, दैट मीन्स ये टू टर्मिनल, एंड देन मैं अब अनदर कमांड इसमें डालने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं रूट यूजर पे जाऊंगा ताकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज मिल जाए, कि मैं मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकूं। तो मैं sudo डॉट सू से पहले इसके दैट मीन्स उस पर जाऊंगा रूट प्रिविलेज पे, देन अपना पासवर्ड डाल के मैं उसे एक्सेस करूंगा। सो यहाँ पे मैं रूट पे पहुंच गया हूँ। ठीक है गाइस, देन मैं यूज कर रहा हूँ एमएसएफ कंसोल। ठीक है, अब एमएसएफ कंसोल क्या होता है गाइस, किसी को पता है इसके बारे में? मेरी आवाज सही आ रही है गाइस अभी? ये सर क्लियर है सर सर। सो एमएसएफ कंसोल क्या होता है गाइस, किसी को पता है? जी सर। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। एमएसएफ कंसोल एक तरह का कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को, या फिर विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल, जो कि एक्सप्लॉइटेशन और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए दैट मींस यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, सो मैंने ये आपको बताया एमएसएफ कंसोल क्या होता है। अब जैसे ही कंसोल ओपन हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, अगर आपको बैनर क्लियर करना है देन यू कैन डू द कंट्रोल एल। सो आपका बैनर क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप कंट्रोल एल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एल से पूरा वो हट जाता है जो भी आपने लिखा है। देन आप क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे आप करेंगे सर्च वी एस एफ टी पी डी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दिस वन, VSFTPD। सो आपने ये, इसलिए मैंने अनदर टर्मिनल पे ओपन किया ताकि आपको दिख जाए। जैसे ही मैंने ये लिखा सर्च VSFTPD, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला ऑक्सिलरी डोज FTP, ये वर्जन दिस एंड एक्सप्लॉइट यूनिक्स बैकडोर। ये बैकडोर का है तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हमें नॉर्मल वाले पे जाना है, दैट मीन्स क्या कहते हैं इस वाले पे, यूज वन पे, दैट मीन्स सॉरी, ये हमारा VSFT नॉर्मल वर्जन है। ठीक है, पर हमें क्या करना है, एक्सीलेंट वर्जन पे जाना है ताकि हमारा बैकडोर का जो इंटरनल उसका वो है उसका एक्सेस मिल जाए। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यूज ओनली वन एंड हिट एंटर।
जैसे ही आपने हिट एंटर किया, आप किस पे पहुंच गए, आप इसकी इंटरनल दैट मींस इसके अंदर पहुंच गए हैं। देखो क्या लिखा रहा है, यूनिक्स एफटीपी वीएस एफटीपी बैकडोर। अब आप बैकडोर के अंदर जा चुके हैं। यहां तक गाइस सबको क्लियर है? गाइस यहां तक सबको क्लियर है? देन इसकी रिक्वायरमेंट चेंज चेक करनी है कि इसको क्या क्या चाहिए, दैट मींस क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। देन मैंने डाला शो ऑप्शंस, एंड जैसे ही मैंने शो ऑप्शंस करा एंड हिट एंटर किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे आरपी आर पोर्ट है 21, ये असाइंड है। ठीक है, टारगेटेड पोर्ट असाइन है 21। सर आर आवाज आ रही है गाइस? जी सर, सर समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? क्या क्या सर फाइंड ठीक आउट है, कर, ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करना होगा? ओके। सो गाइस हम ना क्या कर रहे हैं, हम वेब सर्वर हैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, दैट मींस ये मेरा वेब सर्वर है मेटास्प्लॉइट, हम इसको हैक करना चाह रहे हैं। ठीक है। जी सर। सो पहले मैंने क्या किया, मैंने काली लिनक्स चालू किया। ठीक है, जैसे ही काली लिनक्स मैंने चालू किया, तो काली लिनक्स चालू करने के बाद मैंने उसको क्या सेटिंग करी सबसे पहले, कि मेरा, और ये स्कैन मैंने किसका करा, टारगेट आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है देखो आपको यहाँ दिखेगा, दिख रहा है 192.168.15.140, दिख रहा है? ये सर दिख रहा है। जैसे अब इसको क्या करा मैंने, nmap डाला, SV दैट मींस ये वर्जन को मैंने स्कैन किया, और जितने भी इसके ओपन पोर्ट्स है उसको मेरे को स्कैन करना था। तो मैंने जैसे ही डाला, मेरे को पता चला कि मेरे इतने ओपन पोर्ट्स दैट मींस हैं अवेलेबल। ये देखो दिख रहा है आपको 21 TCP FTP VSFTP, जी ये सर सब दिख चीजें रहा है। मेरे को ओपन करके बताया। अब मैंने क्या किया, मैंने जाके काली लिनक्स में मैंने क्या किया, काली लिनक्स में मैंने जाके उस आईपी एड्रेस को चेक किया मेटास्प्लोइटेबल के, कि ये वर्किंग है, इसका वेब पेज वर्किंग है। तो मैंने देखा कि यस, इसका वेब पेज भी वर्किंग है, दिख रहा है। यहाँ पे मैंने इस पे फायरफॉक्स पे जाके सिर्फ आईपी एड्रेस डाला एंड देन सर्च करा, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पेज भी दिख रहा है। जी सर दिख रहा है सर। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस। पहले मैं क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज पे गया, मतलब रूट पे गया। रूट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, sudo.su डालना पड़ता है। ठीक है, देन मैंने पासवर्ड डाला, तो मेरे को रूट पे प्रिविलेज मिल गया। मैं रूट पे क्यों गया, इसका भी एक रीजन है, ताकि मैं कोई भी चेंजेस करूं तो वो आसानी से हो जाए, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव वो मिल जाए, राइट्स। ठीक है, तो मैं रूट पे गया sudo.su से, एंड मेरे को कमांड मतलब ये इसका एक्सेस मिल गया। देन मैंने यूज किया एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल क्या होता है, एक तरह का टूल होता है किसी भी स्कैनिंग या वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने एमएसएफ कंसोल लिखा, तो मेरे पास क्या ऐसा आइकन आया, मेरे पास एक एमएसएफ 6 करके यहां तक आ गया। यहां तक क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है सर। ठीक है, तो जैसे ही ये आया, तो मैंने क्या करा, मैंने सर्च करा पहला पोर्ट। जो मेरा पहला पोर्ट ओपन था ना काली लिनक्स में, ये रहा मेरा पहला पोर्ट। कौन सा ओपन था, वी वर्जन क्या था, VSF TPD, यही था, दिख रहा है आपको ये? तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इतना लिखा, सर्च VSF TPD। क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। जैसे ही मैंने ये लिखा VSFTPD, उसने क्या करा, उस वर्जन को सर्च किया और उसने मुझे दो नाम बताए। पहला बताया ऑक्सिलरी डॉस FTP VSTPD वर्जन 232, पर ये यूज फॉर किसके लिए था, नॉर्मल पर्पस के लिए। ठीक है, बट हमें क्या करना है, इसको हैक करना है, तो देन वी नीड टू गो विद द बेस्ट। तो हम किस पे गए, एक्सीलेंट वाले पे, दैट मीन्स 1 वाले पे। इट इज क्लियर टू यू? जी सर ठीक है, क्लियर है सर। तो ये हम 1 वाले पे गए, तो मैंने क्या लिखा, मुझे कुछ नहीं लिखना था, मैंने सिर्फ लिखा, ये मेरा कंसोल यहां तक ओपन हुआ, देन मैंने लिखा use1। क्यों, क्योंकि मुझे इस पे जाना था। तो मैंने क्या करा, use1। जैसे use1 किया, तो मेरा ये आ गया, मैं 1 के अंदर घुस चुका हूं, दैट मींस इसके अंदर अब मैं आ चुका हूं। ठीक है, देन मैंने देखना चाहता हूं कि मैं इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, तो मैंने डाला जस्ट शो ऑप्शंस। ठीक है, तो मुझे अब ये ऑप्शंस दिखा रहा है कि इसके अंदर ये चीजें हैं, कि सी एच होस्ट है, सी पोर्ट है, देन प्रॉक्सीज है, आर एच होस्ट है, एंड आरपी पोर्ट है। तो ये होता क्या है, अभी बताता हूँ वन बाय वन। जो आरपी पोर्ट है वो दैट मींस टीसीपी पोर्ट है, ये बता रहा है कि टारगेट का कौन सा पोर्ट ओपन है। तो ये दिख गया 21, दिख रहा है गाइस? जी सर दिख रहा है सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब ये ये सर बताओ। क्लियर है सर। तो इसमें आरपी पोर्ट सेट है, अब हमें क्या करना है, आर होस्ट सेट करना है। आर होस्ट सेट करेंगे, दैट मींस आर होस्ट मींस क्या होता है, विक्टिम का मशीन सेट करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, विक्टिम का मशीन सेट करना है, ताकि हम उसे हैक कर लें। अब उसे सेट कैसे करते हैं वो बताता हूँ गाइस। अब सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेट करने के लिए लिखना होगा SET, यहाँ पे सेट लिखेंगे, एंड हम क्या लिखेंगे, किसको सेट करना चाह रहे हैं, आर होस्ट को। तो जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, आर होस्ट। ठीक है, वैसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन मुझे आईपी एड्रेस डालना है। आईपी एड्रेस क्या था सर गाइस, 192। सर इसमें सी पोर्ट पोर्ट को भी सर हैक कर सकते हैं ना सर?
हाँ अगर कर सकते हैं, अगर इफ यू वांट, लेकिन इसकी सर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हमें टारगेटेड एड्रेस चाहिए, दैट मींस ओके सिर्फ ओके टारगेटेड ओके होस्ट चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आर होस्ट ले रहे हैं। इससे हमें ओके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि हमारा कौन सा टारगेटेड, दैट मींस मशीन, विक्टिम मशीन कौन सी है। हमें सिर्फ उसे विक्टिम मशीन बतानी है। तो यहाँ पे मैंने आर होस्ट की जगह विक्टिम मशीन का आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ। देखो 168 वो .15.140, आई होप इट इज करेक्ट, राइट? यही था ना? यस सर एक बार करेक्ट है चेक सर। कर लेते हैं। ये तो बंद हो गया, एक मिनट चालू करता हूँ दोबारा से। इट विल टेक अ टाइम गाइस। चालू हो गया। सो 192 168 15.140, यस इट इज करेक्ट गाइस। सो जैसे ही मैंने एंटर किया सेट करके, एक मिनट, जैसे ही मैंने सेट किया तो ये सेट हो गया गाइस, ठीक है। जैसे ही सेट हो गया उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डाला शो ऑप्शंस दोबारा से कि भाई सेट हुआ कि नहीं हुआ देखने के लिए। तो मैंने जैसे ही डाला शो ऑप्शंस, तो ये क्या हुआ, मैंने क्या देखा कि आर होस्ट मेरा सेट हो चुका है। इट इज विजिबल टू यू गाइस, सबको दिख रहा है कि आर होस्ट मेरा सेट हो चुका है, जी सर दिख रहा है सर। ठीक है। अब अब मेरा क्या हो गया, जैसे कि मैंने ये करा, अब मैं क्या करूंगा, रन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अब अपना ये टारगेटेड सिस्टम का आईपी एड्रेस डाल दिया है, मेरे को रन करना है। जैसे ही मैंने रन किया, मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा कमांड गाइस। एंड जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हम डालेंगे अनदर कमांड, देखेंगे कि हमें उसका एक्सेस मिला या नहीं मिला, ठीक है। ये चेक करना है हमें। Here and now I'm just checking if config. So guys, what I'm getting the, that means IP address of, that means Kali Linux, that means Metasploitable, right? यहाँ पे आपको कौन सा आईपी एड्रेस मिल रहा है गाइस, तो हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। कौन सा आईपी एड्रेस मिला है, ये आईपी एड्रेस देखो किसका है, मेटास्प्लोइटेबल का है, 192.168.15.140। एंड नाउ हियर आई एम आल्सो गेटिंग द सेम 198 192 168 15 140। आई होप इट इज क्लियर। यस क्लियर है सर गाइस? क्लियर है सर। या तो एक बार मैं दोबारा से इसको बता दे रहा हूँ मैंने क्या क्या किया, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले स्कैन को, दैट मींस एनमैप टूल यूज किया, स्कैन करी ओपन पोर्ट्स की कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। सर लास्ट में देन मेरे को, -0। हाँ वो -0 नहीं है, ये ओ है। ओ फॉर स्टैंड फॉर ओपन पोर्ट्स, ठीक है, कि कौन ओके कौन से पोर्ट्स ओपन है, ये स्टैंड फॉर ओ, ठीक है। ये ओके जीरो नहीं है, माइन हाइफन ओ है, दैट मींस ये करके -O, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है, एसवी होता है वर्जन के लिए कि कौन सा वर्जन ओपन है। तो ये इसने मुझे बताया ये वाले वर्जन ओपन है। तो पहले मैंने क्या करा, एफटीपी ओपन, तो मैंने एफटीपी का वर्जन लिया। अब मेरे को क्या करना है, मैंने देखा जाके कि ये चीजें ओपन है, तो मैंने क्या करा, मैं दैट मींस पहले तो सूडो प्रिविलेज लिया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिल सके। फिर मैंने एमएसएफ कंसोल किया। एमएसएफ कंसोल किया, क्या क्यों करा सर मैंने ये, क्योंकि इससे मुझे वनरेबिलिटीज और स्कैनिंग में मतलब मदद मिलती है। तो मैंने जैसे डाला, मेरा जो एमएसएफ करके ये आया। देन मैंने क्या करा, मेरे को सर्च करना था, जो मैंने पहला मेरा ओपन है वीएसएफ टीपीडी, इसके अंदर मैं घुसा, मैंने डाला वीएसएफ टीपीडी। तो इसके अंदर जैसे ही मैं आया, तो मुझे दो चीजें रिजल्ट मिली, दो रिजल्ट मिली, एक 0 और एक 1। जैसे ही 0 1 मिला, तो मैंने क्या करा, मुझे एक्सीलेंट पे जाना था क्योंकि मुझे गुड पे जाना था, बिकॉज आई नीड टू दैट मींस हैक अ मेटास्प्लोइटेबल। सो मैंने क्या करा, अच्छा वर्जन यूज किया। सो मैंने यूज 1 पे डाला। जैसे ही यूज 1 पे डाला, मैं उसके अंदर जा चुका था। फिर मैंने देखा कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं बैकडोर के अंदर। तो मैंने जस्ट पुट किया शो ऑप्शंस। जैसे ही मैंने शो ऑप्शंस पुट किया, मुझे यहाँ पे पता चला आरपी पोर्ट एंड आर होस्ट। जैसे ही आर होस्ट मैंने, दैट मींस आरपी पोर्ट तो मेरा फिक्स है, टारगेट पोर्ट नंबर फिक्स है, बट व्हाट अबाउट आर होस्ट, आर होस्ट तो मेरा फिक्स नहीं है, राइट। सो आर होस्ट के लिए मैंने क्या किया, आर होस्ट के लिए मैंने अपना टारगेटेड आईपी एड्रेस फिक्स कर दिया। कैसे, सेट आर होस्ट करके। जैसे ही मेरा आईपी एड्रेस फिक्स हुआ, सो मैंने क्या देखा, मैं उसको चेक करा, मैंने कैसे चेक किया, सो ऑप्शन पुट करके। सो मैंने देखा कि आर होस्ट मेरा नाउ सेट हो चुका है, ठीक है गाइज। जैसे आर होस्ट मेरा सेट हो गया, मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्ट उसको रन किया। एंड देखा, रन की जगह आप एक्सप्लॉइट भी लिख सकते हैं, एक्सप्लॉइट लिख के भी ये सेम चीज आएगी। देन मैंने उसको क्या करा, इफ कॉन्फ़िग करके देखा कि क्या मैंने एक्सेस कर लिया। जिसने मेरे को, उसने सेम मेरे को आईपी एड्रेस दिया, दैट मींस यस कि हम इसमें एक्सेस कर चुके हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन गाइज नाउ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है सर यहाँ तक। ठीक है, ये एक बार आप भी करके देखना, आप रिकॉर्डिंग चेक करना, एंड देन प्लीज डू फ्रॉम दैट मींस योरसेल्फ, ओके। अपनी तरफ से भी करना। नाउ वी मूव टू सर द तो दैट मींस आईपी स्लाइड। कोई सा आईपी लेके सर चेक कर सकते हैं सर इस साइट का।
हाँ, आप आईपी एड्रेस ले सकते हैं या फिर किसी भी वेब सर्वर का कुछ भी आप आईपी एड्रेस ले सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। और एक चीज और दिखा, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? जी सर, विजुअल है सर। ठीक है, मेरा फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक अगर नहीं मिल रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये आईडी सर्व टूल, ठीक है, इससे आप इजीली किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, intellipath.com, ठीक है। अगर मैंने इसको सर्च किया, देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे आईपी एड्रेस मिल गया, राइट। कोड भी बता रहा है कौन सा ओपन है, तो इसमें आप इजीली आप इसमें क्या कहते हैं, आराम से आप किसी भी का भी आईपी एड्रेस पा सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट का, जैसे कि लाइक amazon.com, देखो गाइस यहाँ पे भी मुझे आईपी एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। डोमेन, द आईपी एड्रेस ऑफ द डोमेन इज 75.251.62, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से ये टूल बता देता है कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है आईडी सर, सर्व, ठीक है। ये लिंक भेज दिएगा सर, डाउनलोड कर लूंगा सर। ठीक है, मैं भेज दूंगा गाइस। सो अभी तक का ये यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ा है वो क्लियर है ना गाइस? जी सर, क्लियर है सर। सो नाउ लैब इट्स कम्स टू द लैब यस, थोड़ा अच्छा लगता है सर पढ़ने में सर। दैट इज द रीजन। मैं यही देख रहा था, इतनी देर से मैं हेलो हेलो बोल रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा था। तो मैंने इसलिए लैब कराया मैंने, ताकि आप सब देखें यहाँ पे, है ना। तो बट क्या करें, हमारी ड्यूटी है, हमारी थियोरेटिकल पार्ट भी कवर करना है हमें, बिकॉज वी आर नॉट कवरिंग ओनली लैब। अगर क्या हुआ, अगर आप थियोरेटिकल जैसे इंटरव्यू के लिए गए तो आपसे वो थियोरेटिकल पार्ट भी पूछेंगे, राइट। वो लैब ही करवा के नहीं पूछेंगे, तो दैट इज द रीजन आई नीड टू टीच यू द थियोरेटिकल पार्ट्स टू। और मेक श्योर आप इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट भी जरूरी है, ठीक है। आपको नॉलेज तो दोनों ही जरूरी है ना, प्रैक्टिकल भी एंड थियोरेटिकल भी, ठीक है। जी सो सर। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम नाउ टेलिंग टू यू। सो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, बिकॉज इसमें तो हमारे पास एक ही हैंड्स ऑन था, बट अगर हम सेकंड मॉड्यूल पे जाते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ हैंड्स ऑन। फुटप्रिंटिंग में हर एक टॉपिक में हैंड्स ऑन है, ठीक है। हर एक टॉपिक में हैंड्स ऑन है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा मॉड्यूल 2 में। बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा क्वाइट बोरिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं जब एज अ स्टूडेंट था तो मेरे लिए भी बोरिंग था, पर समझना तो पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज विद अगर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स, देन हमारा बेस कम मतलब मजबूत नहीं हो पाएगा, राइट। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, और मैं तो इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और हार्ड ना लगे, ठीक है। सो इसलिए मैं और मतलब इजी इजी एग्जांपल लेके आता हूँ ताकि आपको समझे और रिलेट कर पाओ। सो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस मतलब क्या होता है, कि एश्योरेंस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आपको एश्योर कर रहा है। दैट मींस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस मींस प्रोटेक्टिंग डेटा, या फिर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, लॉस और मिसयूज। अब आपके डेटा को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, किस किस चीज से, या तो आपकी अनऑथराइज एक्सेस से, या फिर कोई मॉडिफिकेशन से, या फिर कोई मिसयूज से, जो कि आपको इंश्योर करता है, जो कि बताता है कि भैया आपकी जो इंटीग्रिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, अवेलेबिलिटी है, ऑथेंटिकेशन है, ये सब एक अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जस्ट एन एग्जांपल, एक बैंक का ऑनलाइन सिस्टम प्रोटेक्ट करता है कस्टमर की ट्रांजैक्शन को यूजिंग इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड रेगुलर सिक्योरिटी चेक्स, राइट। अगर मान लो आपकी डिटेल्स मैं बैंक से फैच करवाना चाहूं, और मैं बैंक पे जाके ये अपील करूं कि मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए, सो बैंक मेरे को प्रोवाइड कर देगी डायरेक्ट, विदाउट एनी आस्किंग कि भैया आपको कौन क्यों चाहिए, आप क्या हो, कौन हो। विदाउट एनी आस्किंग एनी क्वेश्चन वो मेरे को प्रोवाइड करा देगी डिटेल्स बैंक? नहीं सर। नहीं करवाएगी, बिकॉज इंफॉर्मेशन एश्योरेंस। इंफॉर्मेशन एश्योरेंस यहाँ पे काम करता है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण पिलर्स हैं जो मैंने आपको बता रखा था। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी बता रखा है, इंटीग्रिटी भी बता रखा है, अवेलेबिलिटी भी बता रखा है। यहाँ तक कि सारे टॉपिक्स ही आपको कवर्ड करा रखे हैं मैंने, जितने भी हैं। बट मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा ताकि आप भूले ना। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है गाइज? इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि ये इंश्योर करता है कि कैसे ऑथराइज्ड पीपल एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, राइट। ये मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी में बताया था, जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्टिंग फाइल्स एंड इनक्रिप्टेड ईमेल्स। नाउ हम आते हैं इंटीग्रिटी पे। इंटीग्रिटी क्या करता था, ये इसको इंश्योर करता था कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी है वो एक्यूरेट जाए, उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो। अगर मैंने एक भेजा है तो एक ही जाए, वो 1.5 नहीं जाए ना 1.1 जाए, वो भैया एक ही जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें इंटीग्रिटी देखता है। अवेलेबिलिटी क्या करता है कि जब भी आपको जरूरत हो भाई, आप उसको एक्सेस कर पाओ। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक
एक आईडी सर्व का मान लो लॉगिन आईडी है, जैसे अमेजोन की आईडी है। सो मेरे को जब अमेजोन यूज करना है, मैं आईडी को डालूंगा और मैं यूज कर लूंगा। तो ये अवेलेबिलिटी में आता है, कि जो कि ये बताता है कि आपका डेटा एक्सेसिबल हो जब आप जरूरत में हो। ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन मुझे सबको पता है हमको, कि कोई भी जैसे कि सिस्टम को अगर वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमें ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप अपनी गूगल दूसरे फोन में लॉगिन कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ठीक है। कि आपको परमिट देना पड़ेगा, देन यू आर गोइंग टू लॉग इन योर दैट मींस जीमेल आईडी इन अनदर फोन, एदर इट इज फेसबुक ऑल्सो। ठीक है। एंड नाउ नॉन रिपीटेशन दैट मींस रिस्क मैनेजमेंट। सो ये हमें क्या करता है, रिस्क के बारे में बताता है कि कैसे कैसे रिस्क हमारे पास हो सकते हैं, कैसे कैसे चीजें हमारे पास हो सकती हैं। एंड देन वो सिक्योरिटी कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर वही चीजें हैं कि हम उसको रेगुलरली अपडेट करते हैं, और उसके अंदर जितने भी मतलब जैसे कि फीचर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको सही करके उसको कंट्रोल करते हैं, फिजिकल चेक करके। देन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में मतलब हम रोज उसको देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पे रनिंग है। जैसे कि टास्क मैनेजमेंट में जाके हम गए और यहाँ से हम देख रहे हैं कि कौन कौन से हमारे ये ओपन है, दैट मीन्स कौन कौन से डिवाइस हमारे चल रहे हैं। इसमें कोई भी हार्म डिवाइस दिखता है, यहाँ से डायरेक्ट ये करके राइट क्लिक करके एंड टास्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है गाइज। नाउ वी मूव टू द कंटिन्यूअल अडेप्टिंग सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज। यहाँ तक क्लियर है गाइज सबको? कंटिन्यूअल अडेप्टिव सिक्योरिटी जी सर, स्ट्रेटेजीज गाइस। क्लियर क्लियर। ओके। ओके, सो कंटिन्यू दैट मींस कंटिन्यूअल अडेप्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज क्या होती है गाइस? इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट थोड़ा आपको नॉलेज के लिए बताऊंगा, ताकि हम अगले मॉड्यूल्स पे बढ़ें और थोड़ा कुछ हैंड्स ऑन करें। ठीक है। सो ये क्या है, कंटिन्यूअल एडेप्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज? ये एक तरह का डायनेमिक अप्रोच होता है साइबर सिक्योरिटी का। डायनेमिक अप्रोच बोले तो ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है थ्रेट को इन रियल टाइम। ठीक है। कोई भी रिलाइंग, अगर कोई भी फिक्स सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं या फिर कोई भी न्यू रिस्क अटैक होता है, ये इसको क्या करता है, मेजर करता है और उसको मतलब पता लगाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एक बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम है जिसने डिटेक्ट किया अनयूजुअल लॉगिन एक्टिविटी एंड इमीडिएटली आस्क फॉर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन ओटीपी फिंगरप्रिंट स्कैन। ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, मैं हैकर हूं, मैं बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को बार बार लॉगिन कर रहा हूं, बार बार लॉगिन करके मैं क्या कर रहा हूं, उसको मतलब अनेबल हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फायरवॉल लगा रखा है या फिर उन्होंने कुछ चीज अच्छी से उसको मेंटेन कर रखी थी, तो मैं उसको बार बार लॉगिन कर रहा हूँ। सो वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन ओटीपी उन्होंने देखा कि भाई ये एक यूजर है, इस आईपी एड्रेस से ये लॉगिन कर रहा है, जाहिर सी बात है ये हैकर होगा। ठीक है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन वो लगा दिया कि अब फिंगरप्रिंट आएगी हमारे पास, अगर हम अप्रूव करेंगे तो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें क्या आती है, कंटिन्यूअल या फिर एडेप्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, कि अगर हम कोई भी चीजों को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी चीज को हम बचाना चाह रहे हैं एक अच्छी चीजों से, मतलब अच्छी तरीके से, तो वो आ जाएगा हमारा एडेप्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टिव रिस्क मैनेजमेंट? ये क्या करता है, आइडेंटिफाइंग करता है, हैंडल करता है रिस्क को और इन्वॉल्व करता है। जैसे एग्जांपल, अ कंपनी अपडेट इट्स फायरवॉल रूल्स बेस्ड ऑन अ न्यू साइबर थ्रेट्स। ठीक है। उसने फायरवॉल रूल्स को वो करवाया, मॉडिफाई करवाया, जैसे नए नए साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं, नई नई जो डिमांड हो रही है चोरी की, उसकी बिहाफ पे। नाउ यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स, इसको हम यूबीए भी बोलते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूबीए, देन यू नीड टू टेल यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स। ठीक है। ये आता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द यूबीए, देन यू नीड टू नो यूबीए मींस यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स। सो इसका मतलब होता है मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटीज टू डिटेक्ट सस्पिशियस बिहेवियर इनसाइडर थ्रेट्स। कि अगर कोई भी आपको सस्पिशियस बिहेवियर दिख रहा है किसी भी यूजर का, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय सडनली डाउनलोड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, द सिस्टम फ्लैग्स इट, कि भैया उस कभी कभी वो एक एम्प्लॉय था, वो काम ही नहीं करता था, अब आके वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा डाउनलोड कर रहा है अपने पर्सनल डिवाइस में। तो ये क्या करेगा, उसको फ्लैग कर देगा। ठीक है। सो बिकॉज क्या कर रहा है, वो सस्पिशियस थिंग कर रहा है, सस्पिशियस बिहेवियर उसको दिख रहा है, तो ये यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स हो गया। नाउ थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, कि यूजेस रियल टाइम साइबर थ्रेट डेटा, कि अगर आप साइबर थ्रेट डेटा रियल टाइम में यूज कर रहे हैं तो इट इम्प्रूव सिक्योरिटी डिफेंसेस। सो ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा सिक्योरिटी डिफेंसेस को। एग्जांपल, अ बैंक सिक्योरिटी सिस्टम ब्लॉक्स आईपी लिंक्ड टू रिसेंट साइबर अटैक्स। ठीक है। सो इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता गाइज, ये सिर्फ एक तरह का थ्रेट बताता है कि कैसे थ्रेट्स आ सकते हैं और उसको वो कैसे उसको मॉडिफाई करके चेंज करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। नाउ रियल टाइम सर्विलेंस क्या होता है? रियल टाइम सर्विलेंस मींस कि आप रियल टाइम पे नजर रख रहे हो। एग्जांपल, सीसीटीवी कैमरा,
ठीक है। सो आप रियल टाइम पे अगर आप नजर रख रहे हो जैसे कि क्या सिस्टम और नेटवर्क में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या इंस्टेंटली आप नजर रख रहे हो, सो वो रियल टाइम सर्वेलेंस में आ जाता है। देन इंसिडेंट रिस्पॉन्स रेडीनेस, ये क्या करता है, जैसे ही आपको कोई दिक्कत, मान लो आपने सीसीटीवी में देखा कोई बंदा चोरी कर रहा है, आपने उसको इंसिडेंट रिस्पॉन्स दे दिया, जस्ट एन एग्जांपल सी, ये उसी प्रकार से काम करता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स रेडीनेस मतलब कि ये प्रिपेयर्ड करता है, क्विकली डिटेक्ट करता है रिस्पॉन्ड को एंड रिकवर करता है फ्रॉम साइबर अटैक से। जैसे कि कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को किया टू हैंडल डेटा ब्रीचेस, ठीक है। ये एक प्लान था साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, कि जैसे भी आपको कुछ चीज दिखती है तो आप उसको क्या करो, हमें बताओ, हम उसको स्टॉप करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इट इज क्लियर गाइस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो ऑल द टॉपिक्स। बस आपको समझना है कि काम क्या करता है, दैट्स इट। ठीक है, ताकि जब टेस्ट लिया जाए तो आपको पता हो। अभी टेस्ट भी बनेगा आपका जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाएगा गाइस। ओके सर। ठीक है, सो दैट इज द रीजन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बस आपको पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, बस दैट्स इट। ठीक है, व्हाट इज रिस्क, रिस्क हमें पता है क्या, रिस्क क्या होता है। सो रिस्क हमें पता ही है कि भाई रिस्क एक तरह का पोटेंशियल लॉस और डैमेज होता है जो कि साइबर थ्रेट से होता है। ठीक है, कि कोई भी हमने वीक पासवर्ड रख दिया, सो ये हमारे क्या करेगा, अकाउंट को हैक कर देगा। इट इज अ रिस्क। तो रिस्क इज अ रेफर टू पोटेंशियल और हार्म लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सप्लॉइटेशन एंड वल्नरेबिलिटीज, राइट। सो हमारे पास कुछ इस प्रकार के रिस्क हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क क्या होता है, जो भी रिमेनिंग रिस्क होते हैं आफ्टर अप्लाइंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, जैसे कि इवन आफ्टर यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देयर इज स्टिल चांस गेटिंग ए न्यू वायरस, राइट। सो इट इज अ रेजिडुअल रिस्क कि आपने 100% अपना सिस्टम सिक्योर कर लिया, ठीक है, बट अभी भी कोई नया मॉलवेयर इंजेक्ट हो गया और वो आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है। तो 100% सिक्योरेंस जहां पे नहीं है, 100% एश्योरेंस ना आ जाए, वहां पे रेजिडुअल रिस्क तो बना रहता ही है। ठीक है, कि कुछ ना कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है, बट यहाँ पे एक ऐसा भी चीज हो सकती है कि न्यू वायरस इंजेक्ट हो जाए जो आपके सिस्टम को पता ही ना हो, ठीक है, और वो हार्म कर दे, तो ये रेजिडुअल रिस्क के अंदर आ जाता है। देन वी हैव अ रिस्क मिटिगेशन। व्हाट डज इट मीन रिस्क मिटिगेशन, ये बताता है, रिड्यूस करता है, मिनिमाइज द रिस्क, कैसे, यूज करके मल्टी फैक्टर और ऑथेंटिकेशन। तो ये रिस्क मिटिगेशन मतलब क्या होता है, रिस्क एनालाइजेशन, ठीक है। सो ये रिस्क को एनालाइज करता है और एमफीए देन एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करके उसको प्रिवेंट करता है, बात खत्म। ठीक है, नाउ वी हैव रिस्क असेसमेंट। व्हाट डज इट मीन, रिस्क असेसमेंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है कि प्रोसेस करना, आइडेंटिफाइंग करना या एनालाइजिंग करना, एलुवेट करना रिस्क को। ठीक है, मतलब कुल मिला के रिस्क के बारे में पूरी जांच पड़ताल करना। ठीक है, जैसे कि कंपनी है उसने चेक किया कोई सिस्टम को फॉर सिक्योरिटी वीकनेस बिफोर अ साइबर अटैक हैपेंस, कि मतलब अपने अंदर ही, अपने सिस्टम के अंदर ही उन्होंने क्या करा, चेक करना चालू कर दिया कि कोई वो तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं है। तो इसको बोलता है रिस्क असेसमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू द अनदर, दैट मींस टॉपिक इम्पैक्ट। सो अगर आप कोई भी इसको डैमेज करते हैं या फिर कोई भी चीज आप उसको क्या कहते हैं, हार्म करते हैं, इट्स कम टू द इम्पैक्ट। एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, पेशेंट डेटा लॉस को, सो इसमें कैन बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, ठीक है, बिकॉज पेशेंट की सारी डिटेल्स आपके पास आ सकती है। देन वी हैव अ लाइक्लीहुड, अच्छा, द चांस ऑफ अ रिस्क हैपनिंग, कि मतलब लाइक्लीहुड कि जहां पे आपको चांस हैपन हो, मतलब कुछ रिस्क हैपन दिखे, आपको कुछ लग सकता है कि यहाँ पे ये कुछ हो सकता है, तो वो होता है लाइक्लीहुड। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे हैकिंग हो सकती है, सो इट्स कम टू द लाइक्लीहुड। देन वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज मतलब वीकनेस और एक्सप्लॉइट, एनी दैट मींस अटैकर्स कैन एक्सप्लॉइट। ठीक है, सो वन वीकनेस मतलब वल्नरेबिलिटीज होती है, दैट्स इट। कि अगर मान लो आपने कोई आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, सो इट इज, दैट मींस 110% दैट मींस चांस कि आपका सिस्टम हैक हो सकता है, बिकॉज वो आउटडेटेड है। ठीक है, उसमें अगर आप अपडेट भी कर रहे होगे तो वो अपडेट भी जल्दी नहीं होता है, तो दैट इज द रीजन उसमें हम जल्दी से वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं और हैक कर सकते हैं। नाउ वी हैव साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस गाइस। Cyber threat intelligence, what does it mean, guys? I am just telling you, then it is just going to end now. Cyber threat intelligence. Okay. So, what does it mean of cyber threat intelligence? So, cyber threat intelligence means CTI, we can also say CTI. So, ये याद रखना कि CTI क्या होता है. Cyber threat intelligence means collecting, either analyzing and using information about cyber threats. ठीक है, कि कोई भी चीज को कलेक्ट करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना या किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज करना साइबर थ्रेट्स में,
और उनको प्रोटेक्ट करना और प्रिवेंट करना अटैक से, ये हमारा कहलाता है साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, कि जो हमें साइबर अटैक्स के बारे में पहले से ही बता दे। ठीक है, जो हमें साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के बारे में पहले से ही बता दे वो हमें कहलाता है साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। एग्जाम्पल, एक बैंक ने मॉनिटर किया हैकर एक्टिविटीज को ऑन द डार्क वेब एंड अपडेट इट्स सिक्योरिटी टू ब्लॉक पोटेंशियल थ्रेट्स। ओके, सो एक बैंक ने क्या करा, एक ऐसी चीज को मतलब दैट मींस एक्टिविटी को देखा हैकर की कि भैया ये एक दैट मींस आईपी एड्रेस से मुझ पे बार बार लॉगिन कर रहा है। ठीक है, बल्कि जबकि हमारा एम्प्लॉय है ही नहीं, तो उसने क्या करा, उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सो ये हमारा कहलाता है व्हाट इज दैट मीन साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, सॉरी, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस विच ऑलरेडी प्रोवाइड दैट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मिसलीडिंग और मिस हैपनिंग। ठीक है, कि किसी भी हैपनिंग और मिसलीडिंग के पहले ही अगर ये हमें बता दे, ये हमारा कहलाएगा साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड फॉलो बाय द एफिशिएंटली कलेक्ट, analyze and use threat intelligence to enhance their cybersecurity defenses like the same. ठीक है, now we have requirement definition. What does it mean guys? Requirement definition means understanding what threats to focus on. ठीक है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि भैया कौन कौन से थ्रेट्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप उसको प्रिवेंट कैसे करोगे, राइट? सो ये आपको बताएगा रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन। कैसे, कि कोई भी कंपनी अगर हम ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि मान लो फिशिंग अटैक टारगेटेड एम्प्लॉयज कर रहे हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि फिशिंग अटैक्स कैसे कैसे आ सकते हैं। सो ये क्या करता है, एक रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस को बताता है। ठीक है, सो गाइज आई एम गिविंग यू द दैट मींस 10 to 15 minutes break so that we can just start from the that means next module, that means next slide topics. Cyber threats, we are covering that things. Cyber threat intelligence, yeah. So requirement definition I already covered. Now we need to cover the collection part. So collection क्या होता है guys? अगर हम कोई भी डेटा को गैदर कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक लॉग्स, थ्रेड्स, रिपोर्ट्स एंड द डार्क वेब, सो ये हमारा कहलाएगा कलेक्शन। कलेक्शन मींस वही, जैसे कि हम कोई भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इट्स कम टू द कलेक्शन। देन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं या फिल्टर कर रहे हैं रो डेटा को, और उसमें से कुछ बेकार की चीज है जैसे कि जो हमारे लिए रिलेवेंट हो ही ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है प्रोसेसिंग। एंड देन वी मूव टू दी दैट मींस एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, जब हम टर्निंग डेटा इनटू द एक्शनेबल इनसाइट बाय अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट इम्पैक्ट, मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक हैकर या ग्रुप को टारगेटेड करना है, जैसे कि कोई भी ईमेल को दैट मींस एनालाइज करके। ठीक है, कि किसी चीज के बारे में जानकारी निकालना या फिर किसी चीज के बारे में इतना सोचना, मतलब किसी के मतलब टारगेट के बारे में इतना हमें देखना, वाइल दी हैकिंग दैट मींस फुटप्रिंटिंग बाय दी रिकंसाइनेंस। जब भी हम ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या आ जाएगी, एनालिसिस आ जाएगी। एनालिसिस कर रहे हैं और किसी भी सिस्टम के बारे में हम डिटेल्स निकाल रहे हैं, सो ये कम्स टू द इट्स कम्स टू द एनालिसिस। ठीक है, सो एनालिसिस क्या होता है, इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैं डिटेक्ट कर रहा हूं एक स्पेसिफिक हैकर ग्रुप इज अ टारगेटिंग कंपनी दैट मींस ईमेल्स। ठीक है, कि इस ईमेल जैसे मैंने फिशिंग ईमेल्स बनाया और मैंने किसी को भेजा, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको टारगेट कर रहा हूं। दैट मींस अगर उसने क्लिक किया तो उसका सारा क्रेडेंशियल मेरे पास आ जाएगा। तो वो क्रेडेंशियल आ जाएगा तो मैं उसको एनालाइज करूंगा फिर देख के बैठ के कि इसके अंदर क्या क्या मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एनालाइज मतलब कुछ नहीं होता, एनालाइज मतलब होता है सिर्फ देखना कि आपने क्या मतलब एग्जीक्यूट करवाया है, क्या इससे रिजल्ट मिल सकता है। देन वी हैव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंटेलिजेंस डेटा को एडिंग करते हैं एक सिक्योरिटी टूल्स में, लाइक SIEM। ठीक है, एंड फायरवॉल। SIEM मतलब क्या होता है वो आपको बताऊंगा आगे वाले मॉड्यूल्स में आएगा। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन मतलब होता है सिर्फ एडिंग इंटेलिजेंस डेटा। दैट मींस कि अगर आप कोई भी डेटा, जैसे कि कोई भी जैसे फायरवॉल ने अपडेट किया और ब्लॉक कर दिया सस्पिशियस आईपी को ऑटोमेटिकली, तो ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। कि कोई भी चीज अगर आपने क्या कहते हैं अपडेट कर रहे हो, अपडेटेड कर रहे हो, दैट मींस वो क्या कर रहा है, आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है। सो इट्स कम्स टू द इंटीग्रेशन। देन वी हैव डिसैमिनेशन। व्हाट डज इट मीन डिसैमिनेशन? डिसैमिनेशन मतलब होता है कि साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस को विद द टर्म्स कंपनीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, की मतलब अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई फर्म है, तो वो क्या करेगा, नए मॉलवेयर को, जैसे कि एक तरह की नए मॉलवेयर को बारे में बताएगा। एग्जाम्पल, a cyber security firm alert banks about a new banking malware। ठीक है, कि कौन सा बैंकिंग मॉलवेयर आ चुका है। सो ये कम से कम डिसैमिनेशन में आ सकता है, डिसैमिनेशन में आता है कि अगर कोई भी आपको बता रहा है कि मतलब ये मॉलवेयर इंजेक्टेड हो गया, आपको इसका अपडेट करवाना पड़ेगा। सो कोई भी चीज जैसे कि थ्रेट्स आ रही है, जैसे साइबर थ्रेट सिक्योरिटी होते हैं, पेन टेस्टर होते हैं,
तो वो आपकी कंपनी में क्या करेंगे, इस चीजों को बताएंगे, डिसएमिनेशन करेंगे कि कौन सा मॉलवेयर चल रहा है या फिर कौन सा पोर्ट आपका ओपन है, इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। सो इट्स कम्स टू द डिसएमिनेशन। देन वी हैव अ फीडबैक लूप्स। आपको फीडबैक देंगे कि भैया आपको ये चीजें सही करवानी पड़ेगी, ठीक है, और उसी के अनुसार आप एक्ट करेंगे, ठीक है। आप उसी के अनुसार, दैट मीन्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बना रखा, वीक पासवर्ड बना रखा है, तो आप एक्ट करेंगे, आप उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। सो काम बिल्कुल सेम ही होगा एकदम, ठीक है। Now we move to the role of AI and ML in a cyber security. AI and ML role of cyber security मतलब क्या है यहाँ पे? So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज एज एआई अभी हम यूज भी कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको ध्यान से करना और समझना, ठीक है। एआई मतलब क्या है? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये हेल्प करता है, डिटेक्ट करता है, स्टॉप करता है साइबर थ्रेट्स को, और एनालाइज करता है पैटर्न या फिर प्रिडिक्टिंग अटैक्स को, और ऑटोमेटिंग सिक्योरिटीज को। ठीक है, क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या होता है? ये किसी भी हेल्प करता है, मतलब जैसे कि हेल्प करता है किस चीज के लिए? डिटेक्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए साइबर थ्रेट्स को, ठीक है। और क्या करता है? एनालाइजिंग करता है पैटर्न्स को या फिर प्रोडिक्टिंग अटैक्स को, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल, एआई बेस्ड ऑन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट एंड रिमूव्स malware बिफोर इट कैन कॉज हार्म, ठीक है। इट इज द एग्जाम्पल। नाउ we have some key uses of AI and ML in a cyber security. First one is anomaly, that means anomaly detection. एनोमली डिटेक्शन क्या होता है गाइस? एनोमली डिटेक्शन होता है कि अगर हम कोई भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं अनयूजुअल एक्टिविटी, जो हमारे साइबर थ्रेट को बताती है कि भैया ये अनयूजुअल एक्टिविटी, मतलब ये बंदा है, ये 25 बार लॉगिन कर चुका है, अभी भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और इसका हमारे कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी ये हमें क्या कर रहा है, बार बार लॉगिन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये हमें क्या कर रहा है, हम अनयूजुअल एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बैंक का देता था, तो मैंने बोला ना, बैंक कैन डिटेक्ट अ कस्टमर सडनली ट्रांसफरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, फ्रॉम एन अनयूजुअल लोकेशन एंड ब्लॉक द ट्रांजेक्शन, ठीक है। किसी ने भैया 1 लाख रुपए भेजे अपने उसमें, और उसने क्या कहते हैं अपना एड्रेस ही ब्लॉक कर लिया, ट्रांजेक्शन ही ब्लॉक कर दी करने के बाद, ठीक है, तो अपना बैंक ही बंद करवा लिया। तो ये चीजें क्या होती है? अन दैट मीन्स यूजुअल होती है, ठीक है, अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। नाउ वी हैव बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़े अभी पहले 2 टॉपिक पहले, कि एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जो मॉनिटर करता है बिहेवियर को, और बताता है कि आप कौन सी डिटेक्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं, लॉग सेट इन मिडनाइट फ्रॉम द अनदर कंट्री, द सिस्टम फ्लैग्स सस्पिशियस बिहेवियर। जस्ट एन एग्जांपल, आप एम्प्लॉय हैं और आपके आईडी से कोई, आपकी आईडी किसी को पता है, ठीक है, और ऊपर पासवर्ड नहीं पता, तो वो पासवर्ड उसको रीसेट करना चाह रहा है, और वो कोई और हैक कर रहा है, ठीक है। तो अब आपकी शिफ्ट होती है दिन की, अब आप रात में लॉगिन कर रहे हैं सुबह उठ के 4 बजे, तो वो डिटेक्ट कर रहा है कि भैया ये बंदा कौन है जो बार बार ये फॉरगेट कर रहा है, ठीक है, और वो भी अलग कंट्री से, जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं और वो रशिया से कर रहा है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा कि बिहेवियर एनालिसिस है भाई, कि कुछ तो कुछ हुआ है, ठीक है। सो इट्स कम टू द बिहेवियर एनालिसिस। तीसरा, थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस। ये क्या होता है? थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस क्या होता है कि जो हमें थ्रेट के बारे में बता दे पहले से ही, ठीक है, कि एआई स्कैन्स अ मिलियन ऑफ हैकर्स फॉरम्स टू डिटेक्ट अ न्यू रैंसमवेयर ट्रेंड एंड अपडेटेड सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। सो क्या करेगा? थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस करेगा, जिसमें क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, एनालिसिस करेगा साइबर थ्रेट्स को, और उनको प्रिवेंट कर देगा पहले ही, ठीक है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस कुछ नहीं होता, ये एक तरह का ऐसा चीज होती है कि अगर अटैक करने से पहले ही हम खुद को ही एनालाइज स्कैन कर लें, अपने ही पोर्ट स्कैन करें, और देखें कि उसमें कोई वनरेबिलिटीज तो नहीं है, और अगर हमें कोई वनरेबिलिटीज मिले उसको फाइंड और फिक्स कर लें, दैट्स इट। तो ये थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। जी सर, क्लियर है सर। अभी तक कोई भी टॉपिक में दिक्कत है? नहीं सर, ऐसे कोई भी टॉपिक दिक्कत नहीं सर, उसके बाद रिवीजन करने का सर तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर, जो भी है ओके गाइस, सभी ठीक है, फिर क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको ये चीज दिखा देता हूँ कि हम अपना कैसे स्कैन करते हैं, थोड़ा सा। 1 2 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इफ कॉन्फिग आईपी एड्रेस डालूंगा, इफ कॉन्फिग एंटर,
मेरा आईपी एड्रेस क्या है? 1 मिनट गाइस, मेरा ये थोड़ा लैग कर रहा है। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, इसको मैं लिख लेता हूँ। 192.168.15.136, ठीक है। सो फर्स्ट मैं क्या यूज करूंगा, कर्ल कमांड यूज करूंगा। ये कर्ल कमांड आपके आगे आएगी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये कमांड यूज करूंगा, कर्ल कमांड। ये कर्ल कमांड किस काम आती है ये आपको आगे पता चलेगी, इसके ऊपर एक पूरी हमारी अपकमिंग मॉड्यूल है। बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्कैन कैसे करते हैं। जस्ट मैंने एक स्कैन करने के लिए कमांड डाली और मुझे ये पता चल गया, कुछ स्क्रिप्ट पता चल गए जावा स्क्रिप्ट और पाइथन में जो हम यूज करते हैं। वो चीजें हमें पता चल गई कि क्या बोल रहा है डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। हेड, ये सब करके मुझे से पता चल गया। तो इसमें मुझे चीज क्या मिली, इसमें हमें ये मिला कि हमने कौन कौन सी चीजें इसमें, मतलब दैट मीन्स ये सेफ है और डेंजरस है, इसमें मुझे ये चीजें पता चलेगी। अभी कहाँ मिलेगी, यहाँ से पता चलेगी। 1 मिनट। Yeah. So data blocked while the details this website using security service now protect itself from on the liner attack. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger to block, including a word, a phrase, SQL command, malfort data. तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरी जो हमने ये दिया, ये हमने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। क्यों ब्लॉक कर दिया? क्योंकि मेरे मैंने प्री बिल्ड कर रखा है गाइस, कि मतलब कोई भी अटैक्स अगर ऐसे हो तो वो मतलब ब्लॉक हो जाए, क्योंकि मैंने उसको सिक्योर में डाल रखा है। तो सिक्योर में मैंने उसे कर रखा है, दैट इज वाई इसमें क्या हुआ, अटैक कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसमें एक तरह का देखो ये क्या बता रहा है, ये फंक्शन बता रहा है कि हमने HTML फंक्शन यूज किया विंडो के लिए। देन ये उसकी लैंग्वेजेस है जो उसमें यूज होती हैं। देन हमने क्रिएट एलिमेंट करा, स्क्रिप्ट डाले। देन तब भी हमें क्या जाके कुछ भी हमें उसमें डिटेल्स नहीं मिल पाई, ठीक है। देन नाउ वी नीड टू मूव टू द स्कैन ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज ऑन रनिंग आवर सिस्टम्स। सो अगर हमें ये करना है तो हम कैसे करेंगे, मैंने कमांड बता रखी थी। अगेन मैं बता देता हूँ, sudo nmap। sudo nmap क्यों डाला मैंने, वैसे sudo ना भी डालो तो भी चल जाएगा, बट sudo मैंने डाल दिया ताकि ये अच्छी तरीके से मेरे से प्रिविलेज ले, पूरी अच्छी तरीके से पासवर्ड ले एंड पूरे रिजल्ट दे। तो मैंने उसको ऐसे डाला और ये पूरा nmap स्कैनिंग हो रहा है। सो मैं ये बता रहा हूँ कि लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम अपने सिस्टम को कैसे स्कैन कर सकते हैं। और मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला कि मेरा 1716 मेरा एक ओपन पोर्ट है, ठीक है गाइज, ये मिला, ओपन पोर्ट है, ठीक है। 1716 sudo command not found, okay। UFW deny 1716/TCP, yes। ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे में, वो UFW था नहीं। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। UFW होता है क्लोज अनयूज्ड पोर्ट यूजिंग, ठीक है। तो मैंने अभी क्या करा, मैंने जस्ट अपना देखा कि मेरा एक पोर्ट ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्ट ओपन है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये वाला कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ चलता है, क्योंकि अपडेट हो जाता है, हो गया। So, ठीक है। देन मैं यूज करता हूँ अपनी ये वाली, हम्म, ठीक है। नाउ 17 TCP ओपन 1716। हम्म, हम्म,
Hello, guys. My voice is audible to you, everyone. हेलो. जी सर, जी सर। जी या एक्चुअली घर में लाइट चली गई थी, दैट इज द रीजन मेरी आवाज नहीं आ रही. ठीक है. जी सो सर, थोड़ा या, ब्रेक आ रही है आवाज में। हाँ वो एक्चुअली लेटेंसी होगी थोड़ी सी, बिकॉज मैंने अपने फोन के नेट से ऑन किया हुआ है अभी. सो बेसिकली गाइज, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मुझको ये मिल रहा है कि नॉट शोन 655 पोर्ट रीसेट हो गया है. और ये जो मेरा 1716 पोर्ट है ये ओनली ओपन है, और सर्विसेज मेरी ये दे रहा है. ठीक है. ओनली वन आईपी एड्रेस इज ओपन. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जस्ट ये देखा कि मेरी कौन सी पोर्ट ओपन है. मैं जस्ट स्कैन कर रहा था कि कौन सी चीजें ओपन है और कहाँ पे अटैक हो सकता है. सो गाइज, जो मेरा अटैक हो सकता है अभी, अगर कोई अटैक करना चाहे, हालांकि मैंने इसको क्लोज कर दिया है, कोई इश्यू नहीं है, पर वो बैकएंड पे दिखा रहा है. मैंने ये वाली कमांड डाली थी डिनाई करके कि कोई भी अगर चीजें आए, अनयूजुअल एक्टिविटीज आए, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए. ठीक है. तो ये चीजें थी. तो मैंने यहाँ पे देखा स्कैन करके, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये वाला पोर्ट ओपन है. ठीक है. तो इस वाले पोर्ट पे अगर ओपन है, तो दैट इज द रीजन कि अटैक माइट बी पॉसिबल कि इस पोर्ट पे हो सकता है. ठीक है. बट अगर मैं इसको डिनाई कर दूं इंटरनली जाके, देन इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी थोड़ी संभावना कम हो जाए. तो मैं ये चीजें बता रहा था आपको, सिर्फ यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था. आगे आने वाले मॉड्यूल्स में आएगा गाइज, तो यू डो नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है. मैं जस्ट आपको ये बता रहा था थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस क्या होता है. ठीक है. थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस में आपको यही पता चलता है कि थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस, जिसमें आप एनालाइज कर सकते हैं थ्रेट्स. ठीक है. सो इफ यू आर एनालाइजिंग द थ्रेट्स, देन इट्स कम्स टू द थ्रेट एनालिसिस इंटेलिजेंस. ओके. I hope it is clear to everyone, guys. जी सर, क्लियर सर। Okay. Then malware detection. How we can, that means detect the malware. ठीक है. ये मैंने आपको एक बार पिछले दैट मीन्स क्लासेस में दिखाया था, जिसमें मैंने कुछ मालवेयर फाइल्स डाउनलोड करी थी और मैंने उसको क्या कहते हैं अपलोड करी थी. उसमें पता चल गया था कि मालवेयर इस फाइल में इंजेक्टेड है. इफ यू रिमेंबर दोस क्लासेस, राइट? याद है गाइस किसी को भी कि मैंने कैसे उसमें फाइल्स में अपलोड करी थी वो फाइल्स, एंड मैंने दिखाया था कि इसमें मॉलवेयर इंजेक्टेड हो सकता है. ठीक है. सो मॉलवेयर डिटेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे कि मतलब ये मॉलवेयर डिटेक्शन करने के लिए भी जो यूज किया जा सकता है कि इफ वी आर यूजिंग द एआई, दैट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो इट इज आल्सो दैट मींस डिफाइंड अ मॉलवेयर डिटेक्शंस टू. एंड फिशिंग डिटेक्शन, दैट मींस इफ वी फाउंड एनी सस्पिशियस मेल्स. ठीक है. कि कोई भी अगर हम सस्पिशियस मेल पा रहे हैं, उसको दिख रहा है, मिल रहा है हमें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा वो कहलाएगा फिशिंग डिटेक्शन. ठीक है गाइज. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. गाइज, इट इज क्लियर. फिशिंग ईमेल्स दैट मींस फिशिंग डिटेक्शन मींस कि अगर आपको सस्पिशियस ईमेल्स मिल रहे हैं, सो इट्स कम्स टू द फिशिंग ईमेल्स. नाउ वी मूव टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड. देन आईएसओ आईईसी. ओके. आईएसओ आईईसी 27001. what does it mean in 2013? Yeah. मेरी आवाज सही आ रही है गाइस? यस सर, क्लियर है सर। ओके. ओके गाइस. So it is an international standard of information security management system. It provides a systematic approach to managing sensitive data, that means company information, ensuring its confidentiality, integrity and availability. क्या बोल रहा है कि ये एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है. आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है. जो क्या करती है, मैनेज करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को. ठीक है. अब इसमें आईएसओ आईईसी 27001 लिखा हुआ है. ये क्या है इसे समझते हैं. सो एक तरह का ये स्टैंडर्ड होता है जो कि प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क, और एक स्टेबलाइजिंग करती है, किसको, मेंटेनिंग करती है कंटिन्यू, दैट मींस कंटिन्यूटी इंप्रूवमेंट को, कि इसमें कंटिन्यूटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. ठीक है. जो कि आईएसएमएस होती है. आईएसएमएस क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. ये किसको इंप्रूव करेगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या कहते हैं बताती है कि भैया कौन कौन सी चीजें हो सकती है, किस किस चीजों को हम इंप्रूव कर सकते हैं. सो 2013 क्या लिखा हुआ है इसमें, ये एक ऐसा साल है जिसमें हमने क्या करा था, करंट वर्जन एक स्टैंडर्ड का पब्लिश किया था. तो आईएसओ आईईसी 2701 ये जो आया था, ये हमने 2013 में इसको क्या कहते हैं वर्जन को पब्लिश किया. इसका पर्पस क्या था ये जान लो. ये एक हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करती है रिस्क को, इंप्लीमेंट करती है सिक्योरिटी को, और उसको रिड्यूसेस, मतलब जैसे कि हैकिंग को रिड्यूस करती है, कम करती है. ठीक है. इसका की फोकस अगर हम बताएं, तो ये ऐसे कवर एरियाज में जैसे लाइक डेटा प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस,
है ना, इन सब चीजों को वो क्या करती है, सिक्योर रखती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि आईएसओ आईईसी 27001 और 2013 ये एक तरह का इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को, कि भैया जो आपका सिस्टमेटिक अप्रोच चल रहा है, जो आपका मतलब मैनेजिंग कर चल रहा है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, वो क्या करेगा, सिक्योर एंड मिनिमाइजिंग रिस्क है, बिकॉज हमने क्या करा, सब चीज चेक कर लिया। ठीक है, क्लियर है गाइज? ये सर क्लियर है सर। ओके, सो अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज इंप्रूवमेंट हेयर, इसका मतलब क्या है, क्या समझ सकते हो आप इससे? टेल मी गाइज, सो टेल मी व्हाट इज, दैट मींस स्टैंड इम्प्रूवमेंट हेयर, कि मतलब इम्प्रूवमेंट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? इम्प्रूवमेंट, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बता रहा है कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर अ वेज टू मेक थिंग्स बेटर। ठीक है, कि इंप्रूवमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है, कि हम भैया ऐसा कौन सा तरीका देखें जिससे हमें क्या करें, एक बेटर रिजल्ट मिल जाए, वेदर इट इज अ प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, चाहे वो प्रोसेस का प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज का प्रोडक्ट हो, ऐसा हम क्या चीज करें जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिल जाए। नाउ वी हैव ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कि द डे टू डे एक्टिविटीज दैट कीप द बिजनेस रनिंग स्मूथली। ठीक है, फ्रॉम अ प्रोडक्शन, कस्टमर, फ्रॉम आईटी सपोर्ट, दैट मींस आप डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जस्ट लाइक इफ यू आर पेनी टेस्टर, तो आप क्या कर रहे हैं, डे टू डे चेक कर रहे हैं कि आपकी कोई वनरेबिलिटीज तो नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव अ परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन क्या होता है गाइज, अगर आप रेगुलरली चेकिंग कर रहे हैं हाउ वेल पीपल, प्रोसेसेस और सिस्टम्स आर डूइंग कंपेयर टू सेट गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या आप सबकी परफॉर्मेंस, जैसे कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका मैनेजर क्या करता है, आपके परफॉर्मेंस को बताता है कि भाई ये चीजें, ये दिक्कतें, आप इसको सही करो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इवोल्यूशन कर रहा है परफॉर्मेंस का, लाइक द सेम। तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन यहाँ पे भी सेम है। अगर आप किसी की परफॉर्मेंस का, दैट मीन्स बता रहे हैं, किसी की गोल्स का, स्टैंडर्ड का, दैट मीन्स एक क्राइटेरिया बता रहे हैं, इट्स कम्स टू द परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। देन वी हैव अ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स क्या होता है, कि अगर आप कोई भी गोल सेटिंग कर रहे हैं या फिर फिगरिंग आउट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कुछ स्टेप्स नीडेड होंगे टू रीच देम, राइट? सो इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। सो प्लानिंग किसके लिए की जाती है, हमेशा फ्यूचर के लिए। तो आप प्लानिंग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में आप प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हम अपने कैसे आने वाले, दैट मींस वल्नरेबिलिटीज को कैसे रोकें, उसको कैसे, फायरवॉल को हम इसको में कैसे इसको मॉडिफाई करें ताकि ये इसको क्या कहते हैं, ब्रेक कर दे। तो दैट काइंड्स ऑफ प्लानिंग इट कम्स टू दी आईएसओ आईएसी 27001। ठीक है, देन वी हैव अ लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या है गाइस, अगर हम किसी को गाइडिंग करते हैं या मोटिवेटिंग करते हैं टीम को अचीव गोल्स, ठीक है, तो गुड लीडर इंस्पायर ट्रस्ट एंड हेल्प देयर टीम ग्रो आल्सो। ठीक है, सो लीडरशिप इज आल्सो अ दैट मींस नेसेसिटी पार्ट हियर। ठीक है, कि लीडरशिप भी यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज इफ वी वांट टू, दैट मींस सिक्योर आवर सिस्टम, देन वी नीड टू जस्ट, दैट मींस वी नीड टू टेक इनिशिएटिव एज अ लीडर। ठीक है, कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली बात तो इसकी सारी चीजों को पहले एक बार फिजिकली चेक करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, देन फायरवॉल को भी अपडेट करना पड़ेगा। देन आप क्या कर सकते हैं, इट कम्स टू द लीडरशिप, कि लीडरशिप में आ सकते हैं, कि आपको बताया, आपको मतलब और भी लोग चाहिए। एक जैसे कि मान लो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आपके अंडर में भी कोई काम करेगा, जैसे आपके मैनेजर हो गए, वो लीडरशिप, वो लीड करते हैं आपको। क्यों लीड करते हैं, ताकि आप मोटिवेट हो और आप अच्छे से काम कर सकें। So like the same, ISO is also doing the same leadership here, and he is just providing, that means the secure management system, कि आप विकास जो सिस्टम है एकदम एक्यूरेट है और अच्छा तरीके से स्मूथली रनिंग कर रहा है। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, it is clear, that means this topic is clear to you guys? Guys, it is clear? Hello, my voice is clear to everyone, guys? I'm audible? Yes, Shubham sir, you are audible. Okay, great, thank you, thanks for confirmation. But So सबने yeah, सेशन लीव कर दिया. I think Raja is only here. okay, not an issue. So I need to just, that means carry on my, that means session. They can might be watch recording session, I think, because theoretical part is quite boring. So that is the reason I think they left. But don't, do not worry. I just need to just tell.
because it's my duty. I need to teach everything, whether he is in a session or not. So not an issue. So what does it mean of Health Insurance Portability and Accountability Act? So Health and Portability and Accountability Act, we can say HIPAA. Okay, HIPAA in a short form, it's all about the ensuring the privacy and security of individual medical information. ठीक है, सो ये बेसिकली होता कहाँ पर है? ये होता है अमेरिका में, कि अमेरिका में जो थ्री पिलर्स पे काम करता है। ठीक है, मतलब होता तो हमारे यहाँ पे भी है, इंडिया में भी होता है, बट अब बहुत सारी इंडिया में भी होने लग गया है। तो ये क्या सा क्या काम करता है मैं बताता हूँ। थ्री पिलर्स पे काम करता है। प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मीन्स डॉक्टर, then we have a payer that means insurance, and we have a that means patient। ठीक है, पेशेंट, प्रोवाइडर एंड पेयर, ये तीन पिलर पे काम करता है गाइस। सो तीन पिलर पे कैसे? अगर पेशेंट को, जस्ट एन एग्जांपल, अगर पेशेंट को कोई भी मेडिसिन की ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत हुई, तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास दवाई लेगा, बट पैसे पे नहीं करेगा। वो पैसे पे करने की बजाय उसको क्या करेगा, अपना इंश्योरेंस देगा। इंश्योरेंस का वो देगा पर्चा, कि ये मेरा इंश्योरेंस है, आप इससे ले लेना। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, ये क्या करेगा, क्या नाम है, डॉक्टर, डॉक्टर करेगा एक अकाउंट रिसीवेबल को हायर। अकाउंट रिसीवेबल क्या करती है, उनके बिहाफ पे इंश्योरेंस को रीच आउट करती है और उनसे पेमेंट निकलवाती है। सो हिप्पा क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक तरह का यूएस का लॉ है, जो कि प्रोटेक्ट करता है पेशेंट के मेडिकल इंफॉर्मेशन को और उसको प्राइवेसी देता है। ठीक है, ये दो चीजों पे मेनली काम करता है, पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है, ये पीपल को उनके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में या जॉब के बारे में अच्छी तरीके से इसको बताती है, इजियर पीपल को, मतलब इजियर डेफिनेशन देती है। अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, पेशेंट हेल्थ को इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देती है। ठीक है, अब हिप्पा यहाँ पे काम क्या कर रहा है? सो फर्स्टली वी हैव अ प्राइवेसी रूल। सो हिप्पा प्रोटेक्ट करता है पेशेंट के मेडिकल, दैट मींस मेडिकल रिकॉर्ड्स को एंड पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सो इट्स कम्स टू द हिप्पा, दैट इज व्हाई, बिकॉज़ हियर वी आर गॉट गेटिंग द मोर प्राइवेसी। ठीक है, देन वी हैव सिक्योरिटी रूल्स। सिक्योरिटी रूल्स क्या होता है, जो कि फोकस, दैट मींस फोकस करता है प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक, दैट मींस प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, कि ये सिक्योरिटी रूल्स इसके अंदर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जस्ट एन एग्जांपल, कि इफ कोई पेशेंट की कोई अलग डिजीज है, ठीक है, जैसे कि जो कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे कि वो कोई पेशेंट सेलिब्रिटी हुआ, तो सेलिब्रिटी को अगर मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, वो चाहता है कि मेरी जो इंटरनल चीजें हैं वो डिस्क्लोज ना हो भाई, तो उसने उनको मना कर दिया। सो यहाँ पे उनके पास सिक्योरिटी रूल्स भी है, कि उन्होंने, उसने मना कर दिया, बट अब वो क्या कर रहे हैं, अगर उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो उसके लिए रिलायबल है। ठीक है, तो सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पे ये काम करता है, कि अगर उन्होंने मना किया है, देन वो क्या करेंगे, श्योरली सिक्योर होंगे, दैट मीन्स वो उन्हें क्या कहते हैं, उसको डिस्क्लोज करने की मतलब वो नहीं है, राइट्स नहीं है। देन ट्रांजेक्शन्स एंड कोड सेट्स। व्हाट डज इट मीन, ट्रांजेक्शन एंड कोड सेट्स गाइस? ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड कोड सेट मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांजेक्शन एंड कोड सेट मींस क्या होता है, कि अगर आपने कोई भी कोड सेट कर रखा है, दैट मींस अगर आपने बता रखा है, पहले प्री डिफाइंड कर रखा है, कि भाई ये चीजें आपको नहीं बतानी, दैट मींस ये चीजें आपको नहीं करनी है, देन वो क्या करेगा, वो चीज आपको नहीं बताएगा, दैट मींस वो चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज ये एक तरह का क्या हो जाएगा, एक तरह का हार्मनेस हो जाएगी, दैट मींस रिपुटेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, सो ये स्टैंडर्डाइज करेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को। ठीक है, दैट मींस जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगी फॉर हेल्थ केयर क्लेम्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, जैसे कि अब जो डॉक्टर के पास वो दवाई लेने गया, उसने पेमेंट तो नहीं करी, उसने सिर्फ अपना क्या करा, रिसेप्शनिस्ट को अपना मेडिकल का वो, दैट मींस वो इंश्योरेंस का वो जमा करवा दिया। जैसे उसने जमा करवा दिया, तो वो क्या करेंगे, वो अब डॉक्टर तो खुद कॉल करेंगे नहीं, बिकॉज अगर वो खुद कॉल करने बैठ गए तो पेशेंट्स को कौन देखेगा? तो उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल हायर किया। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या करेगा, एक तरह का, दैट मींस उससे कॉल करेगा और इलेक्ट्रॉनिक वे में कॉल करेगा। ठीक है, उसके घर जाके तो बोलेगा नहीं कि आप पे करें, तो उनको कॉल करके उनसे पैसे निकलवाएगा। सो ऑल इंश्योरेंस कंपनी मस्ट यूज द सेम मेडिकल कोड्स फॉर बिलिंग टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, सो मेडिकल कोड्स क्या होते हैं गाइस, ये भी मुझे पता है, कि मॉडिफायर यूज कर लेते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, मैं बीमार हूं अभी, तो मैं डॉक्टर के पास एक दिन में 2 बार गया। ठीक है, तो वो तो, और सेम ही चीज के लिए बुखार था मुझे, बुखार की मैंने ट्रीटमेंट ली, तो अब वो क्या दिखाएगा, अब वो मेरे सेम विजिट दिखाएगा। तो मेरा एक क्लेम तो वो पे कर देंगे, दूसरे क्लेम में वो डुप्लीकेट का डिनाल दे देंगे, कि भैया ये मेरी दोबारा हम क्यों पे करें, हम इसके लिए पहले पे कर चुके, है ना? तो वो क्या करेंगे, क्या नाम है, डॉक्टर डॉक्टर उसमें कुछ मॉडिफायर ऐड करवा देंगे थ्रू आवर कोडर।
कि वो अलग सेपरेट दिखा देगा कि भाई इस वक्त ये अलग आया था, इस वक्त ये अलग आया है, इसकी मेडिसिन खत्म हो गई तब ये आया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तरह का एक मॉडिफायर यूज कर देगा। तो ट्रांजेक्शन एंड कोड सेट्स रूल्स में यही होता है कि ये रूल को बताता है कि अगर ये सेम है, ठीक है, अगर ये सेम है विजिट, तो हम क्या करेंगे उसको, हम उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, अल्टर कर देंगे, ताकि वो भी पेड हो जाए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इन्फोर्समेंट रूल, so what does it mean, enforcement rule? Enforcement rule, that means defines a penalties for violating HIPAA rules or ensures compliance. That means if a hospital fails to protect patient data, so it can face a heavy fines, ठीक है। सो इन्फोर्समेंट रूल भी यहाँ पे है कि अगर भाई, अगर हिप्पा नहीं कर पा रही है प्रोटेक्ट डेटा का, मैंने मना किया कि मेरे बारे में कुछ मत बताना, मेरे डिजीज के बारे में मत बताना, बट स्टिल वो ब्रीच आउट हो रहा है भाई, वो लोगों को पता चल रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिप्पा जिम्मेदार है, वो उसको बहुत भारी अमाउंट पे करना पड़ेगा। देन वी हैव अ ब्रीच नोटिफिकेशन रूल। ब्रीच नोटिफिकेशन रूल्स क्या होता है कि एक रिक्वायर करती है हेल्थ केयर को, प्रोवाइडर को, टू इन्फॉर्म पेशेंट इफ देयर मेडिकल डेटा इज लीक्ड, ठीक है। कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी पेशेंट से कि भैया आपका मेडिकल डेटा लीक्ड हो गया। और एग्जाम्पल, अगर कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटल हैक हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सभी पेशेंट को मतलब मेल कर देगी कि भैया विद इन 16 डेज में, कि भैया ये हमारा लीक हो गया है, तो इस पे कोई कार्यवाही मत करना, जब हमारा हॉस्पिटल ही हैक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि उन्हें हैवी फाइन देने से बच जाए, ठीक है। तो ब्रीच नोटिफिकेशन रूल्स इज ऑल्सो बी देयर, ठीक है। देन यूनिक आइडेंटिफायर्स रूल्स क्या होते हैं? यूनिक आइडेंटिफायर रूल्स, दैट मींस जो एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं MRN नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, ठीक है। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, बट अमेरिका में MRN नंबर होता है जो कि आइडेंटिफाई कर देता है, दैट मींस पेशेंट को, कि ये पेशेंट ये नंबर, और ये एक ही बार जनरेट होता है, ठीक है। तो MRN नंबर होता है मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, जो कि उनको प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। और इनका एक NPI भी होता है। ये NPI किसका होता है? प्रोवाइडर का होता है, ठीक है। प्रोवाइडर दैट मींस डॉक्टर का। तो डॉक्टर का NPI फैसिलिटीज होती है, जैसे कि पेन स्टेट हेल्थ, मिल्टन हर्शी मेडिकल सेंटर लाइक दिस, स्टीफन जोसेफ हॉस्पिटल, लाइक दैट काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, इनके पास एक इनका NPI होता है। NPI भी मुझे पता है, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज, सो बिकॉज मेरे कई सारे दोस्त हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो दैट इज द रीजन। पर NPI नंबर भी होता है यूनिक आइडेंटिफायर रूल्स का, कि जिसमें वो क्या करते हैं, इनका आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से के लिए, दैट मीन्स कौन से प्रोवाइडर का आपको पे करना है। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया, मैंने ट्रीटमेंट लिया हेल्थ मिल्टन हर्शी मेडिकल सेंटर से, ठीक है। तो मेरे पास उसका NPI नंबर होना जरूरी है, सो दैट मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये NPI नंबर है, मैंने इससे ट्रीटमेंट लिया है, आप इसके बिहाफ पे कर देना, ठीक है। ताकि अगर कोई अटैकर हो वो आए और वो दूसरा उसको आईडी बताए, तो वो डायरेक्ट मना कर दे कि सॉरी ये आईडी तो है ही नहीं हमारे पास, आप पहले NPI नंबर बताओ, उसके बाद हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो ये यहाँ पे होता है यूनिक आइडेंटिफायर रूल्स, कि आपके पास एक वो दे देंगे नंबर, जिससे आप क्या करोगे, उसे फैच करवा के तब डिटेल्स निकलवा पाओगे, अदरवाइज नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। नाउ वी हैव अ डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट्स एक्ट। सो कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। कॉपीराइट एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं DMCA रूल, या US कॉपीराइट लॉ क्या कहता है कि ये बोलता है कि डिजिटल कंटेंट जो भी है भाई, चाहे वो मूवीज हो गया, म्यूजिक हो गया, बुक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, फ्रॉम इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इट ऑल्सो सेट अ रूल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू हैंडल कॉपीराइट कंप्लेंट्स, ठीक है। तो ये एक तरह का कॉपीराइट एक्ट होता है, जो भी अगर कोई इंसान कॉपीराइट को मतलब लगाता है, कॉपीराइट बोलता है, तो ये क्या करता है, उसको देखता है, उसको मैनेज करता है। एग्जाम्पल, YouTube removes a video if a music company claims copyright on the song used in it, right? कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड सॉन्ग्स होते हैं जो हम अपने उसमें लगा लेते हैं इजीली, ठीक है, उसको मेंशन भी नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, कॉपीराइट का डाल देते हैं कि भाई इसने मेरा नाम, वो गाना यूज किया बैकग्राउंड सॉन्ग, बट इसने मेरा नाम तक नहीं डाला, तो वो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट में आ जाएगा। देन वी हैव अ सेफ हार्बर प्रोविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइज, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट। सेव हार्बर प्रोविजंस क्या होते हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, फ्रॉम बीइंग स्यूड इज यूजर अपलोड कॉपीराइट कंटेंट एज लॉन्ग रिमूव इट व्हेन नोटिफाइड। कि जैसे कि कहीं भी चीज अगर आपने क्या करा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना कुछ भी कोई कंटेंट डाला, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, इफ यू आर यूजर एंड अपलोड अ, दैट मींस पेटेड मूवीज जस्ट लाइक ऑन यूट्यूब, ठीक है, सो वॉन्ट बी sued बिकॉज इफ दे टेक अ डाउन क्विकली आफ्टर अ कंप्लेंट, ठीक है। कि अगर आपने कोई भी चीज करी, अपनी खुद से बना के डाली है,
ठीक है, तो वो उसको कोई भी कॉपीराइट नहीं बोल सकता, बिकॉज यू आर मेकिंग योर ओन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो डालूंगा टीचिंग की, ये मेरी स्टाइल है, मैं अपने आप से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको कोई कॉपीराइट नहीं बोल सकता। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि अगर आप कुछ भी अपना डाल रहे हैं, शूट अपनी तरफ से डाल रहे हैं, तो इट्स नॉट कम्स टू द कॉपीराइट। बट यस, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ दैट मीन्स सॉन्ग विच इज ऑलरेडी दैट मीन्स हैव अ सिंगर, जिसने वो गाया है, तो वो कम्स टू द कॉपीराइट। ठीक है, if you stolen anything then it comes to the copyright, otherwise not. Then we have anti circumvention provision. इसका मतलब क्या है कि makes it illegal to bypass digital protections, DRM. So क्या करता है ये, use the prevent, that means prevent copying copyrighted content. ये कैसे कैसे breaking the Netflix encryptions to download the share movies violating the DMCA. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे tools होते हैं आजकल, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके बिल्कुल एकदम क्लोन बना सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, पिकाशो ऐप है एक, इंडिया में बहुत प्रचलित ऐप है पिकाशो। इस पे आप जैसे ही पिकाशो पे आप जाओगे, आपको अपडेटेड मूवी, जो भी मूवी आती है विद इन 2 और 3 डेज में आपको मिल जाती है। क्यों? बिकॉज वो एंटिम दैट मीन सर्कमवेशन प्रोविजन है। ठीक है, उसमें क्या करेगा, एक तरह का प्रिवेंशन है, इलीगल बाईपास है, कि जिसमें आपको नई नई मूवीज आपको फ्री में देखने को मिल जाती है, आपको जाने की जरूरत नहीं है थिएटर। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। नाउ नोटिस एंड टेक डाउन। नोटिस एंड टेक डाउन मतलब क्या है कि कॉपीराइट ओनर्स कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू प्लेटफॉर्म टू रिमूव कंटेंट दैट वायलेट्स देयर कॉपीराइट्स। मतलब कि इसमें नोटिस भेजेगा, अगर जैसे आपको कोई इसको पता चला कि आपने भैया उसका कुछ यूज करा है, तो वो क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। ठीक है, कि इसको भाई खत्म करो, टेक डाउन करो। देन वी हैव ऑनलाइन कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट लायबिलिटी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी रूल्स वेबसाइट पे सेट करते हो, ठीक है, ये अवॉइड करते हो किसी भी लायबिलिटी को, फॉलो डीएमसी गाइडलाइन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जस्ट एन एग्जांपल, इफ इंस्टाग्राम रिमूव्स अ स्टोलन इमेजेस, ठीक है, आफ्टर अ ओरिजिनल फोटोग्राफर कंप्लेंट्स, so they won't be used. ओके, सो ऑनलाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लाइबिलिटी लिमिटेशन क्या बताती है, ये एक तरह की रूल्स को बताती है कि भैया हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर कॉपीराइट्स का यूज ना हो। अगर आप किसी भी फोटोज का यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि इज इट योर ऑथेंटिक फोटोज, इसको प्रायर किसी ने यूज नहीं किया, अदरवाइज इट्स कम्स टू द कॉपीराइट। ठीक है, so DMCA protect digital content from piracy while also setting rules on online platform to handle copyright issues properly. ठीक है, सो ये डीएमसी क्या करता है, एक तरह का डिजिटल कंटेंट को पायरेसी देता है, दैट मींस प्राइवेसी देता है, और उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कॉपीराइट्स को इशू को में डायरेक्टली मेंटेन करता है अच्छे वे में। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट 2-3 टॉपिक्स which is we need to just cover it for the today's. So for Federal Information Security Management Act, ये क्या होता है guys? We can say FISMA, that means FISMA. We can say FISMA. So Federal Information Security Management Act होता है US law that requires government agencies to protect their data and IT system. ठीक है, ये एक तरह का यूएस लॉ है जो कि गवर्नमेंट की एजेंसीज को बताती है कि प्रोटेक्ट करती है उनके डेटा और आईटी सिस्टम्स को। ठीक है, एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, हर जगह ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, इंडिया में भी है। ठीक है, सो ये क्या करती है, ये मस्ट रेगुलरली चेक करती है, सिक्योर करती है उसकी की कंपोनेंट्स। ओके, सो फर्स्ट एनुअल रिपोर्टिंग। एनुअल रिपोर्टिंग क्या है कि एजेंसी मस्ट सबमिट ईयरली रिपोर्टिंग्स टू द साइबर सिक्योरिटी स्टेटस, right? The FBI reports the US government about the security measures and cyber threats faced each years, right? So annual reporting करना जरूरी है, हमें साल साल उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। So annual reporting is required. ठीक है, now इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट मतलब क्या है कि हमें रेगुलरली दैट मींस वीकनेस को ऑडिट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन जस्ट फाइंड वीकनेस एंड वी कैन जस्ट फिक्स इट, दैट्स इट। नाउ वी हैव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्क को मैनेजमेंट करेंगे, नेट दैट मींस रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, उसको फिर एनालाइज करके उसको सही करेंगे, दैट्स इट। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मतलब होता है गवर्नमेंट की जो कुछ एजेंसीज होती हैं जिसको हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है रूल्स को। ठीक है, so that it could not be harm the that means reputations of agencies of government. So सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में हमें बताता है कि कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से रूल्स को हमें तोड़ना नहीं है। देन हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेंगे कि हम एजेंसीज मस्ट मॉनिटर देयर आईटी सिस्टम 24/7 टू डिटेक्ट स्टॉप साइबर थ्रेट्स। तो वही बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, जिनको भैया अच्छा खासा काम चल रहा है, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करती हैं कि कहीं कोई मॉलवेयर इंजेक्ट हो गया और भैया कोई सिस्टम हैक हो गया तो हमारा लाखों का डेटा चोरी हो सकता है। तो इसीलिए नाउ वी हैव डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है गाइज,
द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018, वी कैन से डीपीए 2018, ये यूके लो है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है पीपल को पर्सनल डेटा टू एंड इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पे काम करता है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट पे, ठीक है। एग्जाम्पल, एक बैंक है, उसने क्या करा, अपना डेटा को प्रोटेक्ट किया, कस्टमर डिटेल को, नेम, फोन, बैंक बैलेंस को, एंड कैन नॉट शेयर विद देम विदाउट परमिशन, राइट। सो इट्स कम टू द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कोई भी अगर आप डेटा को अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इट्स कम टू द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018। सो पहला टॉपिक क्या है, डेटा प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स। डेटा प्रोसेसिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो क्लियर रूल्स व्हेन कलेक्टिंग द यूजिंग पर्सनल डेटा। फर्स्टली, फेयर एंड लॉफुल प्रोसेसिंग होना चाहिए, ठीक है। कि अगर आप कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो वो फेयर होना चाहिए भाई। डेटा शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। डेटा शुड नॉट बी स्टोर्ड लॉन्गर देन नेसेसरी, और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में आप कैन नॉट सेल कस्टमर ईमेल्स, ठीक है, टू थर्ड पार्टी विदाउट परमिशन। कि अगर आपने ये कर दिया तो भैया आप कस्टमर को अच्छी तरीके से पे करेंगे ढंग से अमाउंट, अगर उसने क्या कहते हैं उसको मतलब फाइल कर दिया किसी भी कंज्यूमर, दैट मींस कोर्ट में, ठीक है। सो ये सब चीजें का फॉलो करना पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। देन वी हैव डेटा सब्जेक्ट राइट्स। डेटा सब्जेक्ट राइट क्या होता है गाइज, इंडिविजुअल डेटा सब्जेक्ट हैव राइट्स ओवर देयर डेटा। व्हाट, कि मतलब डेटा सब्जेक्ट राइट्स में हमारे पास राइट होता है कि अपने डेटा को एक्सेस करना, ठीक है। हमारे पास राइट होता है उसको करेक्शन करना, उसको डिलीट करना, कुछ भी अगर हमें करना है अपने डेटा के साथ। सो इट्स कम टू द डेटा सब्जेक्ट राइट्स। देन डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, वी कैन से डीपीओ। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्या होते हैं कि कोई भी कंपनी हैंडलिंग करती है लॉट ऑफ पर्सनल डेटा मस्ट अपॉइंट अ डीपीओ, ठीक है। सो पर्सनल डेटा को अगर कोई भी मतलब कंपनी हैंडल कर रही है तो हमें ना डीपीओ की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल मस्ट अपॉइंट डीपीओ टू इंश्योर पेशेंट डेटा इज सिक्योर। बिकॉज डीपीओ एक ऐसा मतलब ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के ही काम करते हैं। Then we have international data transfer. International data transfer, that means personal data can only be transferred to the other countries if they strong data protection laws, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, यूके कंपनी ने कैन नॉट सेंड कस्टमर डेटा इन अ कंट्री दैट हैज अ वीक सिक्योरिटी लॉज, है ना। तो यूके के पास वीक सिक्योरिटी लॉ है तो वो इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती, वही कर सकती है जिसके पास स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज होगा, ठीक है। देन एग्जाम्पशंस एंड डेरोगेशंस। एग्जाम्पशंस एंड डेरोगेशन मतलब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन डोंट हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स, राइट, इन ए स्पेशल केसेस। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ फॉलो नहीं करेगी भाई, उन्हें डिटेल चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। पुलिस डू नॉट नीड टू परमिशन टू कलेक्ट क्रिमिनल्स रिकॉर्ड व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, राइट। कि पुलिस के अंदर ये परमिशन है कि भैया आपको कोई पहले रिकॉर्ड्स नहीं करने। अगर कोई बंदा मार रहा है तो उसको जाकर पकड़ो, ये नहीं कि पहले उसके कॉपी देखो कि इसने कुछ कत्ल किया है पहले, या इसने किसी को मारा है क्या। तो ये सब चीजें देखते हुए नहीं भाई करना, आपको जाके डायरेक्ट पकड़ना है उसको, ठीक है। आपको पेजेस की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पुलिस को राइट से भेज जाके पकड़ो पहले। ये नहीं कि पहले वो किसी को मारे तब तुम इंतजार में बैठो कि तुम्हें अब पकड़ना है, ठीक है। एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या होता है, कंपनीज और इंडिविजुअल्स कैन बी फाइंड और जेल्ड, ठीक है, इफ दे मिसयूज और स्टील पर्सनल डेटा, ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस में यही है कि अगर कोई चोर पकड़ा गया, मान लो अगर किसी ने चोरी करी है तो भैया उसको सजा दी जाएगी, दैट्स इट। बस यही है क्रिमिनल ऑफेंसेस में। नाउ साइबर लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज भाई, ये टुडेस टॉपिक लास्ट टॉपिक है, दैट मींस फॉर दिस मॉड्यूल ओनली। सो साइबर लॉज इन अ डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं बट आई डो नॉट वांट टू डिस्क्लोज। आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इज साइबर लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज इन इजी एक्सप्लेनेशन। सो साइबर लॉज प्रोटेक्ट करता है पीपल की बिजनेस को एंड गवर्नमेंट को एंड ऑनलाइन क्राइम्स को, सच एज हैकिंग, फ्रॉड, डेटा थेफ्ट एंड साइबर बुलिंग लाइक दिस, ठीक है। सो डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन साइबर सिक्योरिटी लॉज टू इंश्योर डिजिटल सेफ्टी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट में, सो यूनाइटेड स्टेट में भाई बहुत, दैट मींस फेमस लॉ है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, चेक प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये क्या, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, सी एफ ए, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हैकिंग को, आइडेंटिफाई करता है थ्रेफ्ट को ऑनलाइन फ्रॉड से। एग्जांपल, कि एक हैकर ने स्टीलिंग करा कस्टमर क्रेडिट कार्ड डिटेल फ्रॉम एन ई कॉमर्स साइट, देन कैन इट कैन बी दैट मींस जेल्ड अंडर अ सी एफ एफ ए। तो वो कौन से उसके अंदर दैट मींस जेल में जाएगा, वो सी एफ एफ ए के अधीन जेल में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट किया है,
ठीक है। देन वी हैव सम अदर्स, यूनाइटेड किंगडम, दैट मींस यूके। यूके में कौन सा है? कंप्यूटर मिसयूज एक्ट। क्या? कंप्यूटर मिस यूज एक्ट। इसका मतलब क्या है? ये 1990 में हुआ था, 1990 में। ये क्या होता है? इलीगल टू एक्सेस अ मॉडिफाई कंप्यूटर डेटा विदाउट परमिशन। ठीक है। इफ समवन हैक्स अ बैंक डेटाबेस विदाउट ऑथराइजेशन दे कैन पनिश्ड अंडर आईसीएमए, दैट मींस सीएमए, सॉरी, कंप्यूटर मिसयूज एक्ट। ठीक है। कि विदाउट परमिशन आप किसी का डेटा स्टोर कर रहे हो, भैया आपको इसका भारी भुगतान देना पड़ेगा। देन वी हैव यूरोपियन यूनियन, यूरोप के बंदे। ठीक है। यूरोपियन यूनियन, उसमें क्या काम कर रहा है भाई? उसमें कर रहा है जीडीपीआर, जो मैंने भी बताया था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये कैसे करती है? ये कंपनीज को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करती है पर्सनल डेटा को। जस्ट एन एग्जांपल, फेसबुक मस्ट आस्क टू फॉर कंसेंट बिफोर ट्रेकिंग यूजर डेटा। इट कुड बी फाइंडर अंडर द जीडीपीआर। कि मतलब अगर आपको किसी का डेटा चाहिए तो वो पहले भाई पूछेगी कि आप हो कौन, हम आपको क्यों प्रोवाइड कराएं, है ना। सो ये चीज है। अब नाउ मैं अब आपको बताता हूँ इंडिया में क्या होगा। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में हम बात करते हैं सिर्फ आईटी की। ठीक है। हमारे पास आईटी है। आईटी एक्ट वो भी 2000 में आया था। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये क्या करती है? साइबर क्राइम्स लाइक हैकिंग, आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड साइबर अटैकिंग को, या साइबर दैट मींस स्टॉकिंग को ये रोकती है। सेंडिंग ऑफेंसिंग मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया कैन लीड टू लीगल एक्शन अंडर द आईटी एक्ट। ठीक है। कि अगर आपने किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी सोशल मीडिया पे, या फिर आपने क्या करा, ऑफेंसिव थिंग्स यूज करी सोशल मीडिया पे, सो ये आईटी के तहत 2000 के आपको मतलब इसका भुगतना देना पड़ेगा। ठीक है। आपको जेल भी हो सकती है।